السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول دل کو دھڑکنے دو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کانٹے کے چبھنے جتنا درد ہوگا، پرنیا نے انجیکشن بھرتے ہوئے کہا۔ اسامہ کا چہرہ تو انجیکشن کا سن کر ہی فک ہو گیا تھا۔ وہ فوراً بولا، انجیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں معلوم تھا وہ انجیکشن سے کتنا ڈرتا ہے۔ طیب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، ایک فوجی کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، تم تو گولی کی آواز سن کر بے ہوشی ہو جاتے ہوگے۔ اسامہ فوراً تڑپ کر بولا، فوجی بندوق اور گولی سے نہیں ڈرتا، مگر انجیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اور تم تو مجھے بے ہوش ہونے کا نہ ہی کہو۔ یاد نہیں جب کرنل صاحب کا کتا تمہارے پیچھے لگا تھا تو تمہیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا؟ آخر میں اس کا انداز استہزائیہ ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر سب کو وہ واقعہ یاد آ گیا تھا اور کمرہ ان کے بے ساختہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ طیب تل ملا کر کچھ بولنے لگا تھا کہ پرنیا بات بڑھتے دیکھ بولی، اچھا اب بس خاموشی سے انجیکشن لگواؤ ورنہ میں زبردستی لگا دوں گی۔ مجھے نہیں لگوانا، یہ دھمکیاں کسی اور کو دو۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، صحیح ہے پھر؟ اس نے آنکھوں میں ہی اشارہ کیا تو وہ تو جیسے اشارے کے ہی منتظر تھے، فوراً اسے قابو کر لیا۔ فوزان نے کاندھوں سے اسے پکڑا کہ وہ ہل نہ سکے۔ طیب بازو کو آگے کر کے بیٹھا تاکہ وہ انجیکشن لگوا لے۔ جیسے ہی سوئی نے اس کے بازو کو چھوا، اس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ انجیکشن لگا کر جیسے ہی وہ ہٹی، باقی سب نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اسامہ خون خوار نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے چلایا، میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو، ذلیلو! پہلے پکڑ تو لو۔ چھوڑنا نہ چھوڑنا بات کی بات ہے، رمشا مسکراتے ہوئے بولی تو باقی سب بھی ہنسنے لگے، جبکہ وہ اپنے بازو کو پکڑ کر بیٹھا رہ گیا۔ تابندہ ہاؤس میں دو فیملیز آباد تھیں، تابندہ ریاض اور ریاض ملک کے بیٹے اعظم ریاض اور معظم ریاض اور ان کی فیملی۔ اعظم ریاض کی شادی رقیہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے اسامہ اعظم اور ولید اعظم تھے، جبکہ معظم کی شادی اپنی پھپھوزاد سامیہ سے ہوئی تھی اور ان کے تین بچے، دو بیٹے طیب معظم، آفاق معظم اور بیٹی پرنیا معظم تھی۔ ریاض ملک کی بیٹی سعدیہ معظم کی شادی سامیہ کے بھائی وقار سے ہو چکی تھی اور ان کے دو بچے رمشا اور فوزان تھے۔ وہ بھی اسی کالونی میں رہتی تھیں۔ بچوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر یہاں ہی پائے جاتے تھے۔ اعظم اور معظم کا امپورٹ ایکسپورٹ کا اپنا بزنس تھا۔ طیب نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا تھا، جبکہ اسامہ نے آرمی جوائن کی تھی۔ وطن پاکستان سے اسے بہت محبت تھی۔ آفاق اور ولید اور فوزان ابھی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہے تھے۔ پرنیا میڈیکل کی فائنل ایئر میں تھی، جبکہ رمشا نے BA کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اب کوکنگ کورس کر رہی تھی۔ پرنیا کو گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل تھی۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہ جائے، اس لیے ریاض صاحب نے اس کا نکاح بچپن میں ہی اسامہ سے کر دیا تھا اور عنقریب رخصتی کا ارادہ تھا۔ وہ لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب لنگڑاتے لنگڑاتے اسامہ وہاں آیا اور دھپ سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرنیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر اخبار پر جھکا لیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر اس سے بے خبر نہ رہ سکی اور جھنجھلا کر بولی، کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ فوراً بولا، تمہارے نادیدہ حسن کو تو بالکل نہیں دیکھ رہا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر چبا چبا کر بولی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ آؤ اور مجھے ایسے ٹھرکیوں کی طرح دیکھو۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا، تم نے جو کل میرے ساتھ کیا ہے وہ میں بھولوں گا نہیں۔ وہ اسے جواب دینے ہی لگی تھی جب ان کی پوری فوج ادھر آ دھمکی۔ وہ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ فوراً پاس آ کر کورس میں بولے، السلام علیکم رحمۃ اللہ یا حبیبی، کیسے ہو اسامہ؟ پرسوں وہ چھٹی پر آیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب وہ مسجد گیا تھا تو واپسی پر نہ جانے کیسے گر گیا۔ چھوٹی چھوٹی چوٹیں آئی تھیں، بس بایاں پاؤں تھوڑا سا فریکچر ہو گیا تھا۔ وہ ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا جو کہ اب لمبی ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، تبھی فوزان استفہامی انداز میں بولا، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ محترم اسامہ اعظم انجیکشن سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ طیب ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، نہ پوچھ بچے، یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور یہاں پر سیلاب آ جائے گا۔ ارے نہیں سنائی، میں اس دکھ بھری داستان کو سن کر اس سیلاب میں ڈوبنا چاہتا ہوں، فوزان درد بھری آواز میں بولا۔ بچپن میں ایک دفعہ اسامہ بہت بیمار ہو گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے انجیکشن لگایا اور ایسا لگایا کہ خون بہنے لگا۔ بس میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دن کے بعد سے محترم انجیکشن سے ڈرتے ہیں۔ طیب نے داستان کا اختتام کیا تو سب مصنوعی انداز میں رونے لگے۔ ولید عورتوں کی طرح بین کرتے ہوئے بولا، ہائے میرا بیچارہ بھائی، جس ڈاکٹر نے کسائی کی طرح ذبح کر ڈالا، ہائے ہائے، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟
तैयब आंखों में आंसू भरते हुए बोला, जबकि परनिया और रिमशा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसामा सिर्फ इन्हें घूर रहा था। फिर कुछ देर बाद बोला, फाफे कुटनी औरतों को भी पीछे छोड़ दिया है तुम लोगों ने। और वली, तुम तो मेरा के भाई लग रहे हो सच्ची। वलीद का मुंह ये सुनकर ही बन गया। तैयब उसकी शक्ल देखते हुए बोला, हाँ उसके भाई तो तुम हो ही। खुद को मीरा कह रहे हो, क्यों अपनी जिन्स मशकूक कर रहे हो? आईना तुम्हारे पास बैठने से पहले भी सोचना पड़ेगा। वो बोलकर कहका लगाकर हंसने लग पड़ा। बाकी सबके कह के भी उसके साथ शामिल हो गए। उसामा गुस्से से उसे पकड़ने के लिए उठा, मगर फिर कराहते हुए फौरन बैठ गया। वो इन्हें घूरने और सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो जैसे ही कॉलेज पहुंची उसकी सांस में सांस आई। वो काफी दिनों से नोट कर रही थी कि ब्लैक कार रोज उसका पीछा करती है। उसे ये अपना वहम लगा था, मगर आज तो वो कार कॉलेज तक उसके पीछे आई थी। पहले उसने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। पता नहीं कौन था जो उसका पीछा कर रहा था। वो सोचों में गुम जा रही थी जब राहदारी में किसी से टकराई। इस टक्कर में उसका बैग नीचे गिर गया था। हाथ में मौजूद कागजात सारे फिजा में बिखर गए थे। उसे शदीद गुस्सा आया। वो पहले ही लेट हो चुकी थी, अब ये बिखेड़ा। उसने गुस्से में सामने देखा और बोली, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? अगर आंखों को इस्तेमाल नहीं करना तो किसी को डोनेट कर दीजिए। सामने वाले ने गौर से उसे देखा था और बोला, मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है। किसी को आंखें डोनेट कर दीजिए मोहतरमा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपसे बहस करूं। काश के जितने आप हुलिये से महजब लगते हैं उतने हकीकत में भी होते। वो बुड़बड़ाते हुए कागज उठा रही थी, जबकि वो शौक में था। आप बताएंगे मुझे कि ऐसी कौन सी नामहजब हरकत की है मैंने? एक छोटी सी टक्कर हुई है जिसमें ज्यादा कसूर आपका था, और इल्जाम मुझे दे रही हैं। तीखे लहजे में इस्तफसार किया गया था। मुझे आपके मुंह नहीं लगना। और हाँ, लड़कियों से टकराने के ये तरीके अब बहुत पुराने हो चुके हैं। बाज आ जाएं वरना जूते खाएंगे। और थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब भी सीख लीजिए। वो बुड़बुड़ाते हुए वहां से चली गई, जबकि वो उसकी पुश्त को देखते हुए आयशा से बोला था, तहजीब तो आपसे ही सीखूंगा, और रही मुंह लगने की बात तो ये तो वक्त बताएगा। परनिया मुअज्जम कि कौन किसके मुंह लगेगा। वो पुर इसरार तरीके से मुस्कुराया था। हम सोच रहे थे कि तुम दोनों की अब शादी कर दी जाए। तैयब तो किसी को पसंद करता है। तुम लोगों की शादी के साथ ही उसकी मंगनी कर देंगे। तुम क्या कहते हो फिर? वो दादा के पास आकर बैठा तो इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने पूछा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप परी से पूछ लें। अभी उसकी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई, उसे कोई मसला ना हो। वो धीमे से बोला, उसे क्या मसला होना है? कौन सा रुखसत होकर किसी दूसरे घर जाना है? इसी घर में तो रहना है। और बेटा, मैं मरने से पहले अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता हूँ। जिंदगी का क्या भरोसा, मैं ये ख्वाहिश दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। दादा की आवाज़ गुलगीर थी। कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरी उम्र भी आपको लगा दे। उसामा उनके हाथ थाम कर बोला, अल्लाह न करे मेरे बच्चे कि मुझे तुम्हारी उम्र लगे। बस तुम अपने दादा की ये बात आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो। मैंने कब आपकी बात नहीं मानी दादा? अब जब अगली दफ़ा आऊँगा तो सहरे के फूल खिलवा कर ही जाऊँगा, और मरने वरने की बातें ना करें। अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों को भी खिलाना है। वो शरारत से बोला, चल हट शरीर। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, खाने में क्या है आज? वो अभी वापस आई थी और चेंज करके सीधा किचन में आई। कीमा बनाया है, उसामा को पसंद है ना इसलिए। सामिया बेगम ने चम्मच हिलाते हुए जवाब दिया, अभी कितनी देर है, मुझे भूख लगी है। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोली थी, बस 10 मिनट और। अब के रुकैया बेगम ने जवाब दिया था। उसने खामोशी से सर हिला दिया। तभी उसामा किचन में दाखिल हुआ। उसे देखते ही उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया था, मैं सन्यासी लोग बेवफा होंदे ने, मैं तेनू कदी लोकां विच गिनिया नहीं। तुम्हें भी भूख लगी है क्या? रुकैया बेगम ने उससे पूछा था। लगी तो नहीं, मगर अगर आप अपने हाथ से खिलाएंगी तो खा लूंगा। वो बाजू उनके गिर्द फैलाते हुए लाड से बोला। रुकैया बेगम बेसाख्ता मुस्कुरा दी, आहिस्ता से उसकी पेशानी चूमी और बोली, मैं 100 मरतबा खिलाऊं अपने बेटे को, अपने हाथों से खिलाना, पर जब परनिया आ जाएगी तो फिर तो माँ के हाथ से खाना भूल ही जाओगे। बात के आखिर में उन्होंने शरारती अंदाज से परनिया को देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो उठकर वहां से चली गई। उसामा ने हैरानी से उसे जाते देखा था और बोला, परनिया कहीं गई हुई है जो आ जाएगी, और परी आपकी जगह तो नहीं ले सकती ना? आप तो मेरी अम्मी है ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी प्यारी अम्मी जान, लाड से कहा गया था। उसके लहजे पर रुकैया के साथ साथ सामिया भी मुस्कुराने लगी थी। कहीं जा रहे हो क्या? उसकी तैयारी को देखते हुए सामिया बेगम ने पूछा था। जी चची, फूफो ने बुलाया था, उधर ही जा रहा हूँ। वहां से एक दोस्त की तरफ जाना है, खाने पर मेरा इंतजार ना कीजिएगा। संजीदगी से बताते हुए उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली थी और खड़े खड़े ही पीना शुरू कर दिया। रुकैया बेगम ने नापसंदगी से देखा था उसे। कितनी दफा कहा है बैठकर आराम से गिलास में डालकर पानी पिया करो, ये क्या गधों की तरह खड़े खड़े बोतल मुंह को लगा लेते हो? वो उसामा को डांटते हुए बोली थी। वालदा,
इतनी जहमत कौन करे। सीने पर हाथ के कॉरेंच बजा लाते हुए वो निहायत अदब से बोला था। रुकैया बेगम ने मुड़कर हल्के से उसके झुके सर पर चमाट मारी और कान से पकड़कर सीधा किया। जल्दी वापस आना। अपने दादा को तो जानते हो, तुम्हारे वापस आने तक भूखे रहेंगे और ज्यादा देर भूखा रहना उनके लिए अच्छा नहीं। कहते हुए उन्होंने उसका कान छोड़ा तो वो कान सहलाते हुए नाराजगी से बोला, वालदा, ये बात आप आराम से भी कह सकती थी, मगर आप तशद्दुद पसंद होती जा रही हैं। मेरे जैसे मासूम बच्चे पर जुल्म करते हुए आपका दिल जरा ना कांपा। उफ खुदा, उफ, इतना जुल्म। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके वो एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बोला। उसके अंदाज पर दोनों खवातीन हंसने लगी थीं और हंसते हुए बोली, अपनी ओवर एक्टिंग बाद में कर लेना, तुम्हारी फूफो इंतजार कर रही होंगी, जाओ अब जा रहा हूँ। वो भी हंसते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। इतना तकल्लुफ़ ना करें फूफो, मैं कौन सा मेहमान हूँ। फूफो को टेबल पर मुख्तलिफ चीज़ों से भरते देखकर उसे शर्मिंदगी हो रही थी। तकल्लुफ़ तो तुम ना करो, अपना घर समझ कर खाओ। और ये मेहमानों वाली बात तुमने खूब कही। मेहमानों की कोई शक्ल अच्छी होती है जो घर वालों की अच्छी नहीं होती, कि सारी खातिर मुदारत उन्हीं की करनी है, पहले अपने फिर दूसरे। सादिया सोफे पर बैठते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने मम्मा, इसलिए मैं बिल्कुल हिचकिचाए बिना खा रहा हूँ कि कौन सा उसामा की शक्ल प्यारी है जो वो ये कबाब अकेले अकेले खाए। फौजान पूरा कबाब मुंह में डालते हुए बामुश्किल बोला। सादिया फूफू इसे घूरते हुए बोली थी, शक्ल तो तुम्हारी भी अच्छी कोई नहीं है, बस कर दो खाना, कुछ उसामा के खाने के लिए भी छोड़ दो। जब से यहाँ बैठे हो मुसलसल बकरियों की तरह खाते जा रहे हो। जरा जो तुम्हें अपने बढ़ते वजन का ख्याल हो, फैल फैल कर किधर जा रहे हो। मुझे तो इस औलाद ने परेशान करके रखा है, पता नहीं इसे लड़की कौन देगा। मम्मा, मेरे मोटापे के लिए परेशान ना हो और ना ही लड़की के लिए। जैसे रिमशा के लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसे मुझे भी कोई अपनी लड़की दे ही देगा। खाने के दौरान 1 मिनट रुककर नहायत तसल्ली से जवाब दिया गया था, अरे लड़कियां मोटी भी हो तो प्यारी लगती हैं, लड़के तो फिर ढोल लगते हैं, खा खा कर तुम्हें लोगों की नज़रों और तानों से भी फर्क नहीं पड़ता। फूफो सर पकड़कर बोली थी और उनके ढोल कहने पर उसामा को बेसाख्ता हंसी आई थी, मगर उसने कंट्रोल कर ली थी और सिर्फ दबी दबी मुस्कुराहट से काम लिया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर फौजान को तब चढ़ी थी, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, अब लोगों की परवाह करने बैठा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तेजी से बोलते हुए फौजान ने पकोड़ा मुंह में डाला था और फिर बोला, अगर लड़के ढोल लगते हैं मोटे होकर तो लड़कियां ढोली लगती हैं, और इस वक्त आप मुझे सिर्फ रिमशा की माँ लग रही हैं, मेरी नहीं। अब की बार उसामा अपना कहका नहीं रोक सका। छोड़ो इसे बेटा, ये अगर किसी काम का होता तो आज मुझे तुम्हें ना कहना पड़ता। इसे बस एक ही काम आता है और वह है खाना। सादिया फूफो अफसरदगी से बुनी थी। फौजान बोलने के लिए मुंह खोलने ही लगा था कि फूफो ने उसे खामोश करवा दिया। मुझे उसामा से बात करने दो अब। क्या बात है फूफो, परेशान है आप? उसामा उनके पास बैठते हुए बोला, रिमशा का रिश्ता लेकर आए थे कुछ लोग, बज़ाहिर तो अच्छे थे, मगर फिर भी बेटी का मामला है तो छानबीन तो करनी पड़ती है, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि कुछ मालूमात हासिल कर लो। फौजान का हाल तो तुम्हारे सामने है, और फूफा तुम्हारे वैसे ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं, और आजकल तो उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इसीलिए अब्बा जी ने कहा कि उसामा से कहना, वो सब देख लेगा, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। फूफो ज़रा तफसील से बोली थी। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं भी तो रिमशा का भाई हूँ, मैं सारा मामला देख लूँगा। आप बस लड़के का नाम पता बता दें, आगे मेरा काम है। फिर उसने इन्हें तसल्ली दी। खुशी तो देखो इसकी, अभी तो सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे हैं, कौन सा उन्होंने हाँ कर दिया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो तुम्हें देखने के बाद हाँ करेंगे। रिमशा ने तंज करने के साथ अपनी राय देना ज़रूरी समझा था। उसकी बात पर तैयब ने उसे घुरा था। इस बात का क्या मतलब हुआ कि देखने के बाद हाँ नहीं करेंगे? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि रायना ने पहले से देखा हुआ है, और जब वो खुद राज़ी है तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। और शक्ल तो मेरी इतनी प्यारी है, लड़कियां मरती हैं मेरी पर्सनैलिटी पर। तुम्हें क्या मालूम, सड़ू औरत। तैयब गर्दन अकड़ाकर गरूर से बोला था, जो तुम पर मरती हैं इन्हें सच में मर ही जाना चाहिए। रिमशा तो मुस्कुराना अंदाज में बोली थी, और तुम में ऐसा है क्या जो तुमसे जलूंगी मैं? हाँ सही कह रही हो, मेरे पास तुम्हारे जितनी चर्बी की तह नहीं है। तुम्हारा इतना चर्बी के पहाड़ पर गरूर करना बनता है। आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद हासिल किया है, तैयब ने जवाबी वार किया था। रिमशा बिलबिला उठी थी, परनिया और आफाक के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। उसामा की नज़रें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। उसने उनकी नोक-झोंक पर ध्यान नहीं दिया था। रिमशा उसे जवाब देने लगी थी कि सौम्या बेगम को आते देख खामोश हो गई। तैयारी कर लो तुम अपनी लड़कियों की तरह, तुम्हारी तैयारी भी खत्म होने में नहीं आती, फिर देर हो जाती है, हमेशा तुम्हारी वजह से। तैयब को कहकर वो वापस चली गई थी। वैसे परी, अभी हमें शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए, तुम्हारी शादी के टाइम कितना थोड़ा रह गया है, एंड टाइम पर फिर आधी चीज़ें रह ही जानी है। रिमशा कुछ याद आने पर बोली थी, किधर, अभी तो पूरे 3 महीने पड़े हैं शादी में, इतने पहले से शॉपिंग करके करना क्या है? परी इत्मीनान से बोली थी। यार 3 माह तेजी से गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कल से ही अपनी तैयारी शुरू करती हूँ, आखिर को दूल्हा और दुल्हन दोनों की इकलौती बहन हूँ। तुम कितनी लकी हो ना परी, बचपन में ही निकाह, शादी के बाद भी इसी घर में रहोगी, कुछ तब्दील नहीं होगा। काश मेरा भी बचपन में किसी से निकाह हो जाता, फिर हर ईद पर ससुराल से ईदी आती हूँ।
میرے ناکے مجھ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا، چلو نکاح نہ صحیح منگنی ہی ہو جاتی، اف کاش۔ رشک سے بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ حسرت زدہ ہو گیا تھا۔ اس کی آخری بات ہال میں داخل ہوتے ولید نے سن لی تھی۔ بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ ابھی دنیا میں کوئی عقل کا اندھا پیدا نہیں ہوا جو تم سے شادی کرے، ولید رمشا کو مخاطب کر کے بولا تھا۔ اور وہ اور فوزان ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر گئے ہوئے تھے۔ یار ولی، ایسے نہ کہو، ایک ایسا اندھا پیدا ہو چکا ہے جو رمشا جیسے بلڈوزر کے ساتھ زندگی گزارے گا، فوزان نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا تھا۔ تم میرے بھائی ہو یا اس افریقن بندر کے؟ رمشا غصے سے بولی تھی۔ مطلب؟ سب یک زبان ہو کر بولے تھے۔ مطلب کہ اس کا رشتہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ ہماری جان چھوڑ دے۔ تم لوگوں کو اس نے بتایا نہیں؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تم نے مجھے بھی نہیں بتایا رمشا، پری نے شکوہ کیا تھا۔ میں بتانے ہی والی تھی ویسے بھی، ابھی فائنل تو نہیں ہوا نا۔ ہاں، عین نکاح کے وقت بتا دینا تھا نا، ہم بھی شرکت کر لیتے۔ پھر خفگی سے کہا گیا تھا۔ فائنل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسامہ نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ چلو جی، دیکھتے ہیں پھر کس کی قسمت پھوٹنے جا رہی ہے، طیب ہاتھ چاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اپنی بحث میں ان میں سے کسی نے ولید کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کچھ کھو دینے کا خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں سب کو رائنا پسند آ جائے گی؟ اسامہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا بائک پر، اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ امید تو ہے۔ رمشا کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ پھپھا کے کوئی دور کے جاننے والے ہیں، شاید چچی جانتی ہوں۔ تم نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا، اگر فوزان نہ بتاتا تو ہم نے تو نکاح کے بتاشے ہی کھانے تھے۔ پھر مجھے بھی پہلے ہی معلوم نہیں تھا۔ پھپھو نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تو مجھے پتا چلا، بڑوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ نمشا شادی کے بعد چلی جائے گی، ہمارے گروپ کا ایک ممبر کم ہو جائے گا۔ میں سوچ رہی ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کے بنا کیسے رہیں گے؟ ہم کزنس کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی دوست بنانے کی، بچپن سے لے کر اب تک جو کیا ساتھ میں کیا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو وہ مجھ سے کتنا لڑتی تھی کہ میں نے تم پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی اور کا پارٹنر بننے ہی نہیں دیتی، اور اب وہ چلی جائے گی۔ وہ سب یادیں چھوڑ کر، ہم سب کو چھوڑ کر، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ روکی رہی ہو پاگل، ابھی تو وہ یہاں ہی ہے ہمارے ساتھ۔ تم نے تو ایسے رونا شروع کیا ہے جیسے وہ پیا دیس نہیں پرائے دیس چلی گئی ہے۔ شکر کرو تمہیں کہیں جانا نہیں پڑ رہا، ورنہ تم نے تو رو رو کر حشر بگاڑ لینے تھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ہم لوگ کبھی جدا نہیں ہوئے نا، اس لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ پری، اگر میں چلا گیا تو تب تم کیا کرو گی؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، اور اگر کبھی گئے تو پھر میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے ناراض۔ جانے والے کو کون روک سکتا ہے پری ڈیئر، اس نے گنگناتے ہوئے کہا تھا۔ لو تمہارا کالج آ گیا، بریک لگاتے ہوئے اس نے اسے بتایا تھا۔ تم جا کر دکھاؤ کہیں، میں چلا چلا کر ساری دنیا اکٹھی کر لوں گی، اور پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہی پڑے گا۔ بائک سے اترتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ابھی گھر بھی نہ جاؤں کیا؟ جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ پورے 2 بجے یہاں موجود ہونے چاہیے ہو تم، آئی سمجھ؟ آ گئی محترمہ، اس نے ہنستے ہوئے بائک سٹارٹ کی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ قسمت کے فیصلوں سے بے خبر وہ حال میں خوش تھے۔ کون جانے کی قسمت ان کے لیے کیا فیصلہ کرنے والی تھی، کون جانے کی کس کی بد نظر ان کی خوشیوں کو نگلنے والی تھی۔ دادا جی کے کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی، جانے کس بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ سب ہال میں بیٹھے بظاہر ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر ساری حسیات دادا جی کے کمرے کی طرف تھیں۔ بالآخر طیب کا صبر جواب دے گیا، اور وہ بے چینی سے بولا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ شام سے ہی سارے دروازہ بند کیے کون سا اجلاس کر رہے ہیں؟ ابھی 7 بج رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا چاہیے کہ آخر رائنا کے گھر ایسا کیا ہوا کہ واپسی پر ہی یہ ہنگامی اجلاس بلانا پڑا؟ آفاق نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اور نہیں تو نانا ابا نے اتنے ہی مما کو فون کر دیا کہ ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، کوئی بات کرنی ہے۔ میں تو تجسس سے مر رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے۔ یقیناً رائنا کے گھر میں کوئی بات ہوئی ہوگی۔ رمشا نے بھی اظہار خیال کیا۔ تبھی دادا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سب سے پہلے پھپھو باہر نکلی تھیں، ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی باہر نکل آئے، سب خاموش تھے۔ سب سے آخر میں دادا جی باہر نکلے تھے۔ خواتین کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ مرد حضرات نے وہیں ڈیرا لگا لیا۔ وہ سب سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، آخر بات کیا ہوئی ہے۔ اتنی ہنگامی طور پر دادا جی نے پھپھو کو بلایا، اور تم نے تائی امی کا چہرہ دیکھا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ روئی ہوں۔ چاند کی چاندنی میں وہ اور اسامہ لان میں ٹہل رہے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جو بھی ہے صبح تک پتہ چل جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تو ہماری شادی میں تائی امی کے رونے کی کیا وجہ ہوئی بھلا؟ ہاں، رونا تو مجھے چاہیے، آخر کو میری شادی تم سے ہو رہی ہے۔ وہ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ تمہیں نہیں کرنی مجھ سے شادی؟ وہ چلتے چلتے رک کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ میرے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سب نے قربانی کا بکرا بنا تو دیا ہے مجھے، اب تو ذبح کرنے کی دیر ہے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ اگر یہ بات ہے نا تو نہ کرنا شادی، کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ کر تو دوں، پھر اپنے چچا کا خیال آ جاتا ہے، کون کرے گا ان کی پاگل بیٹی سے شادی؟ کیا ساری زندگی وہ اس بوجھ کو برداشت کریں گے؟ پاگل کسے کہا ہے تم نے؟ گھڑتے ہوئے زور سے پاسوں پر چماٹ ماری تھی۔
उफ ज़ालिम लड़की, अपने मिजाज खुदा पर हाथ उठाते हुए, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? देखना वो लगेगा तुम्हें, उसामा कराते हुए बोला था। वो क्या पाप लगेगा तुम्हें, गुस्ताख लड़की, शट अप। वो हंसती थी। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखने के बाद गंभीर लहजे में बोला था, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा या किसी फिल्मी हीरो की तरह चांद तारे तोड़कर लाने के वादे करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी तुम्हें तकलीफ होगी, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा, हर घड़ी, हर लम्हे। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। उसने नजरें उठाकर उसामा की तरफ देखा। पता है, बचपन से मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना है। अपने साथ तुम्हारे हवाले की इतनी आदत हो गई है कि मुझे अपना आप उसके बिना अधूरा लगता है। चांद तारे चाहिए भी नहीं है मुझे, बस ये हवाला, ये नाम ता उमर चाहिए मुझे, तुम्हारा साथ चाहिए बस। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में मौजूद वारफतगी उसके रुखसार सुर्ख हो रहे थे। इसका ध्यान खुद पर से हटाने को बोली, मगर ये भी ना समझना कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। हर माँ तुम्हारी पे में से आधा हिस्सा मेरा होगा, सुन रहे हो ना? जो हुक्म मिसेस। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। पॉकेट में से सुनहरे कागज़ में लिपटी कोई चीज़ निकाली थी। क्या है ये? खुद ही देख लो। उसके हाथ में देते हुए आहिस्ता से बोला था। सफ़ेद और सुर्ख मोतियों से सजा खूबसूरत सा नफीस सा डिज़ाइन का ब्रेसलेट था। वो मुस्कुरा दी। हम दोनों की पसंद का कलर। वैसे शॉप से गुजरते हुए नज़र पड़ गई, मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ख़रीद लिया। तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा है, लाए हो तो पहना भी दो। अपनी कलाई उसके सामने करते हुए मुस्कुराते हुए बोली थी नरमी से। उसकी कलाई थामते हुए उसने पहना दिया था। दूर आसमां पर चमकता चांद इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो वॉशरूम से निकली तो उसका फ़ोन बज रहा था। कोई अननोन नंबर था, ये सोचकर कि शायद कोई जानने वाला ना हो, उसने कॉल अटेंड कर ली थी। मिस तमीज़, आज आप कॉलेज क्यों नहीं आई? कहीं मिजाज तो नहीं ख़राब? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ उसे सुनी सुनी लग रही थी, मगर याद नहीं आ रहा था कि है कौन। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। वो कॉल काटने वाली थी जब दूसरी तरफ से कहा गया, रॉन्ग नंबर नहीं है, परनिया मुअज़्ज़म बात कर रही हैं ना आप? जी, मगर आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई आप? मुझे अभी चंद रोज़ पहले ही तो टकराव हुआ था हमारा, याद दिलाया गया था। खैर, खाकसार को अरसलाम जट कहते हैं। उम्मीद अब आपको याद रहेगा। टकराव से उसे वो बदतमीज सा शख्स और अपना पीछा करती ब्लैक होंडा सिविक याद आ गई थी। काफ़ी दिनों से वो नोट कर रही थी कि ब्लैक कलर की कार उसका पीछा करती है कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक। वो हमेशा उसकी वैन के पीछे पीछे होती है, मगर उसने ध्यान नहीं दिया था। मगर आज इस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने इसे कॉल तक कर दी थी। उसने सुलगते हुए लहजे में कहा था, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, और ना मुझे आपको याद रखने की ज़रूरत है। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। उसने गुस्से से कॉल काट दी थी। अम्मी, इसमें इतना रोने की क्या बात है? रिमशा और आयशा आपके लिए दोनों बराबर होनी चाहिए। वो कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो थी कि मुसलसल रोई चली जा रही थी। नहीं है बराबर, तुम्हारे मामू से बात कर चुकी थी मैं। अब कितना नाराज़ होंगे वो? तो आपसे किसने कहा था कि अब्बू से और दादा से पूछे बिना मामू से बात कर लें? गलती तो आप ही की है। आपको अब्बू से मशवरा लेना चाहिए था, फिर बात करनी चाहिए थी। क्या मुझे अपनी औलाद की ज़िंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है? पहले तुम्हारा निकाह परनिया से कर दिया, मैं कुछ नहीं बोली, और अब रिमशा का रिश्ता वलीद से तय कर दिया। चलो, परनिया बहुत अच्छी थी, मगर रिमशा मेरे इतने काबिल बेटे के लिए वही रह गई है क्या? वो रोते हुए बोली थी। रिमशा भी अच्छी है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कम से कम आपको ऐसा नहीं समझता था। आप तो बहुत प्यार करने वाली हैं। ऐसा सोच सोच कर अपना दिल क्यों ख़राब कर रही हैं? आप ये सोचें कि रिमशा वलीद की खुद की पसंद है, वो उसके साथ खुश रहेगा। रिमशा आपकी आंखों के सामने पली बड़ी है, अच्छी लड़की है, हमारे घर के माहौल को समझती है। जहाँ तक आयशा की बात है, तो वो तो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ना ही वलीद से उसका मिजाज मिलता है। अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करेगा। आप खुले दिलो दिमाग से सोचें और उनकी खुशी के लिए दुआ करें। उन्हें समझाते हुए बोला था। वो समझी थी या नहीं, मगर इस बात ने सर ज़रूर हिला दिया था। अंदर अंदर ये सब चल रहा था और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। आफाक अभी तक शौक में था। सुबह ही इन्हें पता चला था कि तैयब की शादी भी उसामा के साथ होगी, और उसके ससुराल वाले 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाह रहे थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर शादी की तैयारियां बहुत मुश्किल थी, वो भी एक नहीं दो की। और साथ में वलीद ने रिमशा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो कि बखुशी मान ली गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात भी यही थी। तो इसमें इतना शोर करने की क्या बात है? अच्छा है ना, मिस्टर ब्यूटी को मिस बम्पर मिल जाएगी, परफेक्ट कपल, इन अदर वर्ड्स रब मिलाई जोड़ी। तैयब ने इत्मीनान से कहा, हाँ ये तो है, पर हमें खबर क्यों नहीं हुई? या तो हम बहुत बेवकूफ़ हैं या वलीद बहुत स्मार्ट है। कैसे हमारी नाक के नीचे रिमशा से मोहब्बत फरमा रहे थे और हमें खबर ही नहीं हुई। दोनों बातों का मतलब एक ही है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि दादा रिमशा की शादी तुम में से ही किसी के साथ करेंगे, और फाइनली देखो, मेरा अंदाज़ा वो फ़खरी अंदाज में बोला था। हाँ, इतने जो तुम एस्ट्रोलॉजिस्ट हो ना,
जो तुम्हें सब मालूम होगा। अगर था भी तो हमें कभी बताया तो नहीं, बड़ा अंदाजा था तुम्हारा, उसने तंजी अंदाज में कहा था। तैयब का ध्यान मोबाइल की तरफ था, उसने शायद सुना नहीं या फिर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो जैसे ही कॉलेज पहुंची थी, यकदम से जाने वो कहाँ से उसके सामने आया था। एक लम्हे को तो वो डर गई, मगर फिर उसे शदीद गुस्सा आया। कल से इस इंसान ने उसे इतनी कॉल्स और मैसेज किए थे कि वो नाक तक आजिज आ गई थी। हाय मिस परी, आप मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही और ना ही कॉल अटेंड कर रही हैं? उसे नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा गया था। और आप इतने ढीठ हैं कि मेरा इतना इग्नोर करने के बावजूद मुसलसल कॉल्स करते रहे। वो तपे हुए लहजे में बोली थी। हाँ शुक्रिया, आप आगे चलकर इससे ज़्यादा ढिठाई का मुजाहरा देखेंगी। खैर, आप कल आए नहीं, तबीयत तो ठीक थी ना आपकी? मुस्कुराते हुए पूछा था। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, और मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? मैं आपका मुस्तकबिल करीब में होने वाला हस्बैंड हूँ, और नंबर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है? पैंट की जेबों से हाथ डालते हुए इत्मीनान से कहा गया था। परी के तो तलवों पे लगी और सर पे बुझी, फिर गुस्से से बोली। अगर नाम और नंबर मालूम कर लिया था तो इतना भी पता होगा कि मेरा निकाह हो चुका है और अगले माह मेरी शादी है। आप मेरे हस्बैंड तो नहीं बन सकते, मगर मेरे हस्बैंड के साले जरूर बन सकते हैं। वो बोलकर आगे बढ़ गई थी, जबकि वो वहीं साख्त खड़ा था। ये तुम्हारे लिए। वलीद ने सर झुकाकर चॉकलेट रिमशा की तरफ बढ़ाई थी। उसके लेने के बाद जैसे ही उसने सर उठाया, चॉकलेट रिमशा के बजाय फौजान के हाथ में थी, और इन सब के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वलीद तेजी से फौजान पर झिपटा था, जो कि चॉकलेट को उलट पलट कर देखते हुए बोला था। वैसे तो ये चॉकलेट खाता नहीं, मगर तुमने इतने प्यार से दी है तो इनकार करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। किसने दी है तुझे मोटे? वापस कर मेरी चॉकलेट। वलीद चिल्लाते हुए दोबारा उस पर चिपटा था। वो तेजी से चॉकलेट उसकी पहुंच से दूर करते हुए बोला, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कहने के साथ ही उसने चॉकलेट मुंह में डाल ली थी। मुझे नहीं दी थी, पर मेरी बहन को तो दी थी ना। वो खाए या मैं खाऊं, एक ही बात है ना रिमशा? मुंह तेजी से चलाते हुए उसने तायद चाही थी, जबकि वलीद उसे खूंखार नजरों से घुरा था। जी नहीं, रिमशा तड़क कर बोली थी। तुम्हारे पेट का दोजख भरता भी है कि नहीं? अभी एक दर्जन के लिए केले ठोस कर आए हो, और अब ये चॉकलेट। हाँ वो तो केले थे, ये चॉकलेट थी, और वैसे भी केले मैंने आधा घंटा पहले खाए थे। रहने दे यार, तूने 5 मिनट पहले खाकर भी यही कहना है कि कल खाया था। तैयब हंसते हुए बोला था। तो तुम क्यों चलते हो? अपने नसीब का खाता हूँ। कौन सा तुम्हारा खाता हूँ? वो ढिठाई से बोला था। हाँ, और इस नसीब में दूसरों का नसीब भी शामिल होता है, उसामा ने भी हिस्सा लेते हुए कहा था। उसकी बात पर फौजान का मुंह बन गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझा था, इसलिए वो चुप करके बैठ गया था, जबकि उसकी हालत पर वो सब हंस दिए थे। तुम जा रहे हो? कमरे में दाखिल होते उसने बेचैनी से पूछा था। वो जो बैग में अपनी चीजें रख रहा था, पलट कर उसे देखा था। हाँ, लेकिन थोड़े से दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बैग की जिप बंद करते वो इत्मीनान से बोल रहा था। दादा से बात की थी मैंने, शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, और वो मान गए। और बाकी सब, और मेरा हाउस जॉब? वो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। बाकियों को मनाना दादा का काम है, और हाउस जॉब तो वहां भी हो सकता है। मेरी अगली पोस्टिंग किसी शहर में होगी, तब तक तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। तुम ना जाओ ना। उसकी आंखों में उम्मीद थी। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, जब भी मुझे जाना होता है तुम हमेशा यही कहती हो, ना जाओ ना। अब तक हमेशा रोकर रुखसत करती हो। कब आदी होना है तुमने मेरे जाने का? आखिर में उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम वहां होते तो मेरा दिल तकलीफ में होता है। एक बेचैनी होती है जो मेरे दिल को अपने हिसार में ले लेती है। जाने क्यों हर फोन की बेल पर मेरा दिल सिकुड़ कर फैलता है कि कहीं वो रो दी थी। तुम्हें पता है, खोने से ज्यादा खो देने का खौफ जानलेवा होता है। तुम वहां होते हो तो मेरा दिल तुम्हें खो देने के खौफ से लम्हा लम्हा मरता है। एक लम्हा मुझे सदियों के बराबर लगता है। मेरा दिल हर वक्त तुम्हारी खैरियत की दुआ मांगता है। मैं बेसुकून हो जाती हूँ। मेरे कान तुम्हारी आहटों के मुंतजिर होते हैं। मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, पर फिर भी मैं तुम्हें रोक लेना चाहती हूँ। इसकी हिचकी बन गई थी, और वो जो उसे सुन रहा था आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया था। उसका रोना उसे तकलीफ दे रहा था। अब बस रोना नहीं है, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी तड़प सब जानता हूँ। पर क्या तुम इन माओं को तकलीफ जानती हो जिन्होंने अपने इकलौते लखते जिगर खोए हैं? कहते हैं औलाद का दुख माँ बाप की कमर तोड़ देता है, पर तुम जानती हो अपने बेटों को खोने के बाद भी इस जमीन की माएँ ऐसे मुस्कुराती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके दिल तकलीफ से फटते हैं, पर फिर भी उनके होंठों पर मुस्कुराहट होती है। तुम उस माली का दुख समझती हो जो अपनी सारी जिंदगी लगाकर एक छोटे से पौधे को परवान चढ़ाता है कि जब वो दरख्त बनेगा तो उसके साए में बैठेगा, और जब वो वक्त आता है तो कोई जालिम लकड़हारा आकर उस दरख्त को बेरहमी से काट कर चला जाता है, और उस माली की उम्र भर की रियासत ज़ाया चली जाती है, मगर वो फिर भी मुतमईन होता है कि उसकी मेहनत से किसी और ने फ़ायदा उठाया। तुम्हें पता है, जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो मैं सोचता था वापस चला जाऊं। मुझे क्या ज़रूरत है इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने की? इस वक्त एक इंसान ने सिखाया था कि इस वतन को ज़रूरत है, हमारी इस मट्टी का कर्ज है हम पर।
اس نے بتایا تھا کہ اگر ہر کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اپنا آرام و سکون دوسروں کے لیے خراب کرنے کی، تو اس ملک کی اتنی عوام جو راتوں کو ہمارے بھروسے سکون سے سوتی ہے، ان سب کا سکون ختم ہو جائے گا، یہ ملک ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ آزادی جسے حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، وہ آزادی ختم ہو جائے گی، وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا اور پھر دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ موت تو برحق ہے نا، مرنا تو ہے ہی، ہمیں آج نہ صحیح کل صحیح تو کیوں نہ اس ملک کے لیے جان دیں، اس دھرتی کا قرض اتاریں اور آنے والی نسلوں کو ایک آزاد پرسکون سرزمین دیں اور انہیں قربانی کا درس دیں، نہ کہ خود غرضی کا۔ ویسے بھی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نومولود بچوں کو دیکھا تک نہیں ہوتا اور وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی کئی خواب ہوتے ہیں، پر وہ اپنے دوسروں کے خوابوں کی تکمیل کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی بیویاں، ان کی مائیں ان کی راہ تک رہی ہوتی ہیں، مگر وہ لوٹ کر نہیں جاتے۔ وہ اپنا خون دوسروں کے بچوں کے آرام و سکون کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور ان کی فیملیز کا حوصلہ دیکھو۔ ان کی بیویاں کہتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی بیوہ ہوں، اور اپنے بیٹوں کو بھی قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپا کرب دیکھو تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ انتظار انہیں بھی ہوتا ہے، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، دعائیں وہ بھی کرتی ہیں، لیکن کیا وہ رکنے کے لیے کہتی ہیں؟ نہیں، وہ تو خود بھیجتی ہیں قربان ہونے کے لیے۔ تم بھی میرا حوصلہ بڑھاؤ، مجھے بتاؤ کہ مجھے کمزور نہیں پڑنا، تمہیں میری طاقت بننا ہے، میری کمزوری نہیں۔ میری پری کوئی کسی سے کم ہے کیا؟ اسے سامنے کیے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی تھی اور دھیمے لہجے میں بولا تھا، جانے والوں کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، نہ کہ آنسوں کی بارش میں۔ اسے ایسا سے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ فل یونیفارم میں جانے کے لیے وہ سب سے مل رہا تھا۔ تائی امی کی آنکھیں نم تھیں، دادا جی اسٹک کے سہارے کھڑے مسکرا رہے تھے، مگر ایک اندیکھا خوف ان کی آنکھوں میں بھی تھا۔ یہ اسامہ ہی ہے، ہینڈسم، یا پھر یونیفارم پہننے لگتا ہے؟ رمشا اس کے کان میں گھسی پوچھ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پر ساتھ کھڑے آفاق نے اس کی منمناہٹ سن کر کہا تھا، یہ وردی کا حسن ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جو عام سے عام انسان کو بھی خاص بنا دیتا ہے۔ اس کا جواب سن کر پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ رمشا اب آفاق سے کہہ رہی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تمہاری کوئی بات اچھی لگی ہے۔ سب سے مل کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نثر ہو گئے تھے، پھر وہ جھک کر ساتھ کھڑی رقیہ بیگم سے بولا تھا، پری کا خیال رکھیے گا میرے لیے، یہ سوچ کر کہ اس کی تکلیف سے آپ کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ ولید نے کار سٹارٹ کی تھی، فرنٹ ڈور کھول کر وہ بیٹھ رہا تھا جب اس نے ایک دفعہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھیں اور وہ اسے کوئی پیغام دے رہی تھی، پر کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے نظروں کا رخ موڑ لیا تھا اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس کی نظریں دھول اڑاتی کار کے ٹائروں پر تھیں، سب اندر چلے گئے تھے، مگر وہ لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی کار کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کے دل نے کہا تھا کہ اس مسافر نے اب لوٹ کر نہیں آنا۔ آج طیب کے سسرال والے کھانے پر آ رہے تھے تو سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ رمشا اور اس نے کچن سنبھالا ہوا تھا، جبکہ باقی دونوں خواتین ہال کی صفائی کر رہی تھیں۔ اس کے سسرال والوں کو کیا پڑی تھی کھانے پر آنے کے پہلے اتنی جلدی سے شادی کا شوشہ چھوڑا اور اب ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرو۔ شادی میں پہلے ہی اتنا کم ٹائم رہ گیا ہے اور ان کے چونچلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ سلاد کاٹتے ہوئے رمشا نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، ویسے طیب کے سسرال والے بھی عجیب ہی ہیں، پہلی دفعہ میں ہی ہاں کہہ دی اور پھر جلدی شادی کا شور مچا دیا۔ وہ بریانی کو دم دیتے ہوئے بولی تھی، اور رائنا میڈم بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ بھلا کون سی لڑکی شادی کے اتنے قریب اپنے سسرال جاتی ہے؟ دیکھتے ہیں میرے بھائی کی پسند کیسی ہے، وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ لکھوا کے رکھ لو، تمہیں رائنا کو دیکھ کر شدید قسم کی مایوسی ہونے والی ہے، کھیرے کا قطلہ منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا۔ اس نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا تھا۔ چند دن کی خاموشی کے بعد پھر سے اس کی کالز آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تنگ آ کر اس نے نمبر ہی بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا اور اب وہ ایک نئے نمبر سے اسے کالز کر رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نمبر دیکھے بنا اس نے کال اٹینڈ کی، پر دوسری طرف سے آتی آواز پر ایک لمحے کو وہ شرمندہ ہو گئی تھی، پھر بولی، ایک رانگ نمبر تنگ کر رہا تھا، میں سمجھی اسی کی کال ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دوسری طرف سے سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ اتنی کون سی بتانے والی بات تھی، ابھی نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تھی، مگر اس کے اطمینان کو دوسری طرف سے آنے والے جواب نے غارت کر دیا تھا۔ کتنے دنوں سے تنگ کر رہا ہے؟ تمہیں آئندہ جو بھی بات ہوگی تمہیں مجھے بتانی ہے، چاہے عام ہو چاہے خاص۔ اف چھوڑو اسے، تم بتاؤ کیسے حالات ہیں وہاں کے، اور تم کیسے ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حالات اچھے نہیں ہیں، تم دعا کرو۔ اور گیس چلے گے کیا؟ میں تو ہر وقت کرتی ہوں تمہارے لیے، تم بھی اپنا خیال رکھا کرو، وہ فکر سے پر لہجے میں بولی تھی۔ طیب کے سسرال والے کیسے لوگ ہیں اور رائنا کیسی ہے؟
हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी। रायना अच्छी है पर उसकी अम्मी काफ़ी चालाक औरत है। जितनी देर यहाँ बैठी रहीं यही कहती रहीं कि उनकी बेटी को जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की आदत नहीं है। मुश्किल है कि रायना हमारी फैमिली में एडजस्ट हो सके, वो परेशानी से बोल रही थी। और उसकी बहनें, वो तो ऐसा लगता था कि अपने घर में आई हुई हैं, ऐसे घूम फिर रही थी। पता नहीं दादा अब्बा कैसे मान गए इस रिश्ते के लिए। हो जाएगी एडजस्ट, तुम फिक्र ना करो। और तैयब की शादी रायना से होनी है, ना कि उसकी अम्मी बहनों से थोड़ी होनी है। और तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? तुमने वेडिंग ड्रेस ले लिया? वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला था। तैयारियां तो अभी शुरू हुई हैं। रोज रोज शॉपिंग पर जाती हैं, सुबह कॉलेज और शाम को इनके साथ पूरा मॉल घुमाती हैं। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। और वेडिंग ड्रेस कल ही फाइनल करके आई थी। डीप रेड कलर का ड्रेस पसंद किया है मैंने, उसे बताते हुए कह रही थी। और दूसरी तरफ से उसामा के होठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई थी। तो मेरी पसंद के कलर का ड्रेस चूज किया है मिसेज ने, तो जिसके लिए पहनना है उसकी पसंद का ही होना चाहिए ना। वो भी मुस्कुराते हुए कह रही थी। धीमे धीमे रात गुजर रही थी और वो झूले पर बैठी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। ये वाला ड्रेस देखो कितना प्यारा है और कलर भी तुम पर अच्छा लगेगा, यही फाइनल कर लो। वो और रिमशा आज शॉपिंग पर आई थी और पिछले 1 घंटे से रिमशा उसे घुमा रही थी। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। है तो अच्छा पर देखो इसमें मैं ज़्यादा मोटी लगूंगी। ड्रेस को साथ लगाते उसने तायद चाही थी। माफ़ कर दो मुझे, अब तुम शादी मेरी है और तैयारी तुम कर रही हो। होना तो ये चाहिए था कि तुम खुद की शॉपिंग छोड़ो और मेरी मदद करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद के लिए ही कुछ पसंद नहीं आ रहा। वो आजिज़ आ गई थी उससे। शादी भले से तुम्हारी है मगर मैं तुम्हारी और दुल्हा की इकलौती बहन हूँ। सब तुम्हारे साथ साथ मेरी तैयारी भी देखेंगे और तुम तो वैसे भी प्यारी हो। जो भी पहनो अच्छा लगता है, मुझे देखकर खरीदने पड़ते हैं, ना कि कौन से मुझ पर सूट करेंगे। वो तफसील से बोली थी। प्यारे होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी शॉपिंग ही ना करूं और तुम्हारे साथ ही मटर गश्त करती रहूं। तुम खरीदो जो खरीदना है, मैं ज्वेलरी वाली साइड पर जा रही हूँ, कहकर वो दाईं तरफ मुड़ गई थी। वो झुमके देख रही थी। जब उसे अपने पीछे आहट का एहसास हुआ, पलट कर देखा तो उसे पाया। वो गहरी सांस भरकर बोली, कब तक पीछा करने का इरादा है आपका? मेरे जवाब के बाद आपको नाउम्मीद हो जाना चाहिए था, मगर सलाम है आपकी ढिठाई को। क़यामत तक पीछा करने का इरादा है। और आपको क्या लगता है मेरा नंबर ब्लॉक करने से और ये बता देने से आपका निकाह हो चुका है, मैं पीछे हट जाऊंगा? तो गलत फहमी है आपकी। वो इत्मीनान से बोला था। अच्छा और कुछ? सीने पर हाथ बांधते हुए वो उससे ज़्यादा इत्मीनान से बोली थी। ऐसा क्या है तुम्हारे उस शौहर के पास जो मेरे पास नहीं है? गौर से देखो मुझे, उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो एक आम सा कैप्टन और मैं, मेरा खुद का बिजनेस है, हर लिहाज से इससे बेहतर हूँ। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, तुम उससे डाइवोर्स ले लो। बाजुओं से पकड़कर उसे सामने करते हुए वो जोर से बोला था। तड़ाक झटाक से अपने बाजू से उसकी गिरफ्त में से छुड़वाते उसने खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। थप्पड़ की आवाज़ पर सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? तुम हो क्या? समझते क्या हो खुद को? उसामा का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे आम कहने की? तुम हो आम और तुम्हारी सोच है। दोबारा मेरे सामने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा था और फिर उसकी साइड से निकलती चली गई थी। चंद लम्हे खड़े रहने के बाद वो झटके से पलटा था और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? मूड क्यों खराब है? मॉल से भी तुम मुझे जबरदस्ती ले आई, पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही। रिमचा उसके सामने बैठते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना, बस सर थोड़ा दर्द कर रहा है इसलिए तुम्हें वापस ले आई, कल फिर चले जाएंगे। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। सच बताओ ऐसा सर दर्द पहले तो कभी नहीं हुआ तुम्हें? फिर अचानक से वो मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं कुछ उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगी, वो उठते हुए बोली। जा रही हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? वो बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद किया था। बंद दरवाजे को देखते हुए वो सर हाथों में गिराकर सोचने लग गई थी। अब क्या चाहते हो तुम? बदला लेना चाहते हो उससे? पिछले आधे घंटे से वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो था कि जख्मी शेर की तरह गुस्से में फुंका रहा था। थक हार कर आखिर उसने पूछ ही लिया। हाँ चाहता हूँ बदला लेना। वहां मॉल में इतने लोगों के सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा, जलील किया। लोगों की नज़रों में मेरे लिए तो मस्खर था। वो हंस रहे थे। मुझ पर एक लड़की ने लड़की से थप्पड़ खा लिया। मैंने जब ये याद आता है मेरा खून खौल उठता है। वो खौलते हुए लहजे में बोला था। तुम तो मोहब्बत करते हो उससे और मोहब्बतों में बदले और अना नहीं होती। और वैसे भी वो सही कह रही थी, उसका निकाह हो चुका है, तुझे भूल जाना चाहिए उसे, आगे बढ़ जा जिंदगी में। हाँ करता था मोहब्बत, मगर अब जिद है वो मेरी। समझती क्या है वो खुद को? इससे बदला तो लूंगा मैं, इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा और ना उसे भूलने दूंगा। नजरें दीवार पर जमाए वो अजीब से अंदाज में बोला था। वो उसे देख कर रह गया था। उसके बचपन का दोस्त था। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने कुछ ठान लिया है तो वो कर रहेगा, चाहे इसमें खुद का कितना ही नुकसान क्यों ना हो।
घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं। देखते ही देखते दिन गुजर रहे थे और अब एक हफ्ता रह गया था और अभी इतनी चीज़ें रहती थीं। इस दौरान अरसलान की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। उसने सुकून का सांस लिया था कि शुक्र है उसने पीछा छोड़ा। उसकी तरफ से मुतमईन होकर वो दिल से शादी की तैयारियां कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशी खैमा थी जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। शादी के हंगामे जाग उठे। रोज़ रात को ऊंची आवाज़ में डेक लगाए जाते, साथ में खुद की बेसुरी आवाज़ के जादू भी जगाए जाते। इस काम में सबसे ज्यादा आगे वलीद और फौजान होते थे। अब भी टक्कर का मुकाबला जारी था। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। फौजान ने दरमियान में आते हुए तान लगाई। रिमशा ने घूरा था, फिर जवाबी हमले के तौर पर बोली, दो गधों की लड़ाई में परी का क्या काम है। उसकी तान पर कहकों का एक तूफान पड़ा था। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वलीद ने ठुमका लगाते हुए उसे साइड पर किया। दोनों लड़कियों की तरह ठुमके लगा लगा कर डांस कर रहे थे। अब तैयब कुछ सुनाएगा, आखिर को ये दुल्हा है। फौजान ने आवाज बुलंद कहा था। बाकी सबने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। इधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, उधर हमारा जनाजा उठेगा। तैयब की आवाज पर सबने उसकी तरफ घुर कर देखा था। बस फैला दी ना मनहूसियत। इधर कोई नहीं मैयत पड़ी किसी की जो तुम ये रोना धोना मचा रहे हो। वलीद ने औरतों की तरह ताने देते हुए कहा था। तो खुद ही कहा था कि गाना सुनाओ। तो गाना कहा था, ये नहीं कहा था कि बैंड सुनाना शुरू कर दो। तैयब की बात पर आफाक ने तंजिया अंदाज में कहा था, मुझे तो यही आता है, सुनना है तो सुनो। रहने अताउला के जानशी, तेरी भूडी आवाज़ सुनने से अच्छा है हम लोरी सुन ले। फौजान ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था। दफा हो जो तुम लोग खुद को अली जफर समझने लगे, मरासी ना हो तो। तैयब तड़पते हुए बोला था, छोड़ो इसे परी, तुम भी गाना गाओ। उसामा तो यहाँ है नहीं, उसकी जगह तुम्हें गाना है। रेमशा ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, मुझे गाने नहीं आते, मैं कोई नहीं गाने वाली। परी ने बदकते हुए कहा था। ज्यादा मासूम ना बनो परी, शराफत से सुनाओ वरना। फौजान ने धमकी आमेज लहजे में कहा था। वरना क्या कर लोगे तुम लोग, परी ने उठते हुए कहा था और फिर वहां से भागी थी। मगर वो लोग उसके इरादों से पहले ही वाकिफ थे, इसलिए फौरन पकड़ लिया था और अब नारेबाजी हो रही थी। गाना सुनाओ गाना सुनाओ। उसके गिर्द घेरा डाले वो घूमते हुए नारे लगा रहे थे। मुझे नहीं आता ना, कल सुना दूंगी पक्का, वो हंसते हुए बोली थी। अब कल सुनाना पड़ेगा, याद रखना। फिलहाल हमारी सुरीली आवाज में सुनो। रिमशा याद दिलाते हुए बोली, तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने, दिल के बदले दिल का नजराना देने। बेसुरों की तरह उसके गिर्द घूमते वो लोग गा रहे थे। परी उनके दरमियान खड़ी बेतहाशा हंस रही थी। घर इनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। अपने कमरे के दरवाजे में खड़े दादाजी ने यह मंजर नम आंखों से मुस्कुराते हुए होंठों से देखा था। बेसाख्ता उनके दिल से यह रौनक हमेशा कायम रहने की दुआ निकली थी। अम्मी मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं बिल्कुल ना जाती। इन्हें मनाने के लिए वो लजाजत से बोली थी। क्या ज़रूरी है परी, तुम्हारी शादी में एक दिन रह गया है और तुम्हें कॉलेज जाना है, ये भी कोई बात हुई भला। मैं नहीं दे रही इजाज़त। स्वामिया बेगम चूल्हा बंद करते हुए सख्ती से बोली थी। मेरी प्यारी अम्मी मान जाए ना। उनके गले में बाहें डालते हुए उसने लाड से कहा था, जिद करके मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जब कह दिया है कि नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, अपने कमरे में जाओ। अब मुझे और भी काम करने हैं। उनके लहजे में तहकम था। वो और कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लग रही थी। ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ते की छुट्टियाँ ली हैं मैंने, जो कि कल से शुरू हो रही हैं। आपने इजाज़त नहीं देनी थी, इसलिए मैं पहले ही दादा से पूछाई थी। अब मैं जा रही हूँ। वली जाते हुए छोड़ देगा, आते हुए कैब ले लूंगी। वो तसल्ली से इन्हें बताकर भागी थी। परी रुको, मेरी बात सुनो परी। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी थी, मगर वो पहले ही हॉल से निकल चुकी थी। ये लड़की भी किसी की नहीं सुनती। बुड़बुड़ाते हुए वो दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई थी। मॉम, मेरे इस जोड़े के साथ मैचिंग की चप्पल नहीं है, आप मेरे साथ चलें या फिर मैं परी को ले जाऊं। रिमशा शर्ट उठाए कमरे से बाहर निकली थी। कोई ज़रूरत नहीं है परी को साथ लेकर जाने की। परसों उसकी शादी है और आज वो तुम्हारे साथ शॉपिंग मॉल्स की खाक छानेगी। सातिया बेगम ने एक नज़र उसे देखा था और अपनी नजरें हाथ में पकड़े मैगजीन पर जमाती थी। तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ जाएंगी। जाने फिर जल्दी से वापसी पर मुझे परी से मिलने जाना है। वो तेजी से बोलते हुए दोबारा कमरे की तरफ बढ़ी थी। फौजान आता है तो उसके साथ चली जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी लंच भी तैयार करना है। वो मैगजीन में गुम थी। मुझे नहीं जाना उसके साथ, इतनी जल्दी मचाता है और फिर उसे खाना भी खिलाना पड़ता है। मैं परी को ही साथ ले जाती हूँ, अभी तो 2 दिन है शादी में। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। जाना हुआ तो फौजान के साथ चली जाना और ये परी से थोड़ा दूर रहा करो। तुम कितनी दफ़ा समझाऊं तुम्हें, वो उसे डांटते हुए बोली थी। आपको मसला क्या है परी के साथ? सबके सामने आप उसे इतने प्यार से बात करती हैं, मगर बाद में आपकी जुबान में उसके खिलाफ तलखी आ जाती है, ऐसा क्यों है? वो हैरानगी से पलटी थी। समझ जाओगी बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ कि उससे दूर रहा करो, वो उसे समझाते हुए बोली थी। मुझे तो उससे दूर रहने में कोई भलाई नजर नहीं आ रही, कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बेवकूफ़, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक समझ नहीं आनी। वो बुड़बुड़ाते हुए दोबारा मैगजीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। कॉलेज से बाहर निकलते उसने सुकून का सांस लिया था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां थी, लेकिन लोग भी कम थे।
ऐसे में टैक्सी का मिलना मुश्किल था। यही सोचते वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ी। हर तरफ हू का आलम था। इस गर्मी में कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और एक वो थी जो सड़कों की खाक छान रही थी। उसने माथे पर आया पसीना साफ किया था, नजर इधर उधर दौड़ाई थी। दूर दूर तक टैक्सी तो क्या, किसी भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। चंद लम्हे रुककर उसने अपनी सांसें दुरुस्त की थी और फिर दोबारा चलना शुरू किया। अभी उसे चलते थोड़ी देर हुई थी जब कोई गाड़ी झटके से उसके पास रुकी थी। उसके संभलने से कोई गाड़ी से निकला था और क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया था। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की मगर मुकाबिल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। चंद लम्हों में भी वो होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। होश आने पर उसने खुद को बंधा हुआ पाया था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ताकि वो शोर न मचा सके। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। नॉर्मल से साजो सामान से सजा कमरा था जिसके दरमियान में वो कुर्सी पर बांधी गई थी। उसने हाथ खोलने की कोशिश की मगर नाकाम हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। कौन था जिसने उसे अगवा किया था? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो यही सोच रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और आने वाले को देखकर उसे समझ आ गई थी कि उसे अगवा करने वाला कौन था। वो शख्स चलते चलते उस तक आया था और उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया था। उसने चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपनी सांसें बहाल की थी। फिर चीखते हुए बोली थी, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ पर? पीछा छोड़कर क्यों नहीं देते? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इतनी भोली ना बनो कि ये तुम्हें मालूम नहीं कि क्यों लाया हूँ। और कहाँ तक पीछा छोड़ने की बात है तो बताया तो था कि क़यामत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो ऐन उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, तुम घटिया हो मुझे मालूम था, पर इतने ज्यादा हो इसका अंदाजा नहीं था। उसने गुस्से से कहा था, चलो अब तो पता चल गया ना, मगर मुझे इस घटियापन पर मजबूर भी तुमने ही किया है। अगर तुम मेरी बात मान लेती और मुझे लोगों के सामने जलील ना करती तो मैं तुम्हारे साथ ये ना करता। वो इत्मीनान से बोला था, मैंने बताया तुम्हें कि मैं किसी के निकाह में हूँ, शादी है परसों मेरी। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? उसके लहजे में बेबसी थी। निकाह खत्म हो सकता, तलाक हो सकती है, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आता? वो उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला था, नहीं हो सकता खत्म। मैं मोहब्बत करती हूँ उसामा से, कैसे छोड़ सकती हूँ उसे? वो रो दी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम चाहिए हो हर हाल में। उसने चिल्लाते हुए कहा था, मेरी शादी होने वाली है, मुझे जाने दो प्लीज। वो उसके आगे गिड़गिड़ाई थी, नहीं होगी शादी। कोई भी शरीफ इंसान एक रात घर से बाहर गुजारने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। और बिलफर्ज अगर उसामा मान भी गया तो उसकी फैमिली, ये मुआशरा उसे ये कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़े तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। उसके लहजे में बेरहमी ही बेरहमी थी। अगर मेरी शादी उसामा से ना भी हुई तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम दुनिया के आखिरी मर्द हुए तब भी नहीं। नफरत करती हूं मैं तुमसे। सुना तुमने? उसने चिल्लाते हुए कहा था, अभी तो तुम आराम करो, रात में मुलाकात होती है तुमसे। कहते हुए वो दोबारा चला गया था। उसके चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, जबकि वो घर वालों की परेशानी का सोच सोच कर रोए चले जा रही थी। आफाक, जाओ परी को कॉलेज से लेकर आओ। आधे घंटे का कहकर गई थी और अब 4 घंटे होने को आए हैं, कॉल भी अटेंड नहीं करी। मेरा दिल परेशान हो रहा है, जाकर उसे लेकर आओ। सौम्या बेगम उसे उठाते हुए परेशानी से बोली थी, आ जाएगी अम्मी, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो आप परेशान हो रही हैं। वो बेफिक्री से बोलते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। फिक्र की बात है ना, परसों शादी है उसकी, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक वो जिद करके चली गई और अब तुम नहीं जा रहे उसे लेने। परेशानी से कहते आखिर में उन्होंने उसे घुरा था, जाता हूँ अम्मी, अगर आधे घंटे तक ना आई तो चला जाऊंगा लेने। इत्मीनान से कहते हुए उसने चैनल चेंज किया था। अब्बा जी, परी अभी तक घर नहीं आई, आप किसी को भेजें ले आए उसे। सामिया बेगम ने रियाज साहब को परेशानी से बताया। सुनकर वो भी फिक्रमंद हो गए थे मगर जाहिर नहीं होने दिया। आ जाएगी, अभी तो उसके कॉलेज टाइमिंग भी खत्म नहीं हुई, तुम वैसे ही परेशान हो रही हो, थोड़ी देर देख लेते हैं। कह तो उन्होंने दिया था पर दिल की बेचैनी कम नहीं हुई थी। जाने कितना टाइम गुजर चुका था, उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हों। पता नहीं अम्मी और बाकी सब कैसे होंगे, मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। सर को झुकाए वो अपनी सोचों में गुम थी। जब दोबारा दरवाज़ा खुला था उसने देखने की कोशिश नहीं की थी। उसे मालूम था कि आने वाला कौन हो सकता है। कुछ चाहिए है तो बताओ। वो उसके सामने खड़ा था। हाँ चाहिए है, दोगे? सर उठाकर सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। क्या? आज़ादी चाहिए मुझे तुम्हारी इस कैद से, तुमसे। चिल्लाते हुए उसने हाथ खोलने की कोशिश की थी मगर बेसुध। मुमकिन नहीं ये, सॉरी। रुख मोड़ते हुए बेरुखी से जवाब दिया गया। क्यों? मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मैंने भी बताया है मुझे नफरत है तुमसे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी नफरत की कोई अहमियत नहीं है। रहना तुम्हें फिर भी मेरे साथ ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से रहो या ज़बरदस्ती करनी पड़े मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत करते हो ना, तो ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझे रुस्वा कर रहे हो? ऐसी मोहब्बत नहीं की जाती। तुम्हें तो शायद मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। वो चिल्लाई थी। हाँ नहीं जानता मतलब, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ रहो और मुझे मोहब्बत का मतलब सिखा दो। उसके लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। कैसे जाने दूँ? अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरा दिल सारी उम्र के लिए परेशान रहेगा। तुम्हें उसकी परवाह नहीं?
हाँ नहीं है परवाह, तुम्हें है मेरी परवाह, मोहब्बत के दावेदार हो। मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। फिर तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तो तुम दे दो कुर्बानी अपनी फैमिली से, प्यार करती हो ना तो उसामा को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहीं से जाने दूंगा अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो। पंजों के बल जमीन पर उसके सामने बैठते उसने ऑफर की थी, ये जिंदगी है, कोई कोई गेम शो नहीं कि ये करोगे तो ये मिलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, वो मिन्नत आमीज लहजे में बोली थी। मेरी भी जिंदगी है, ये जिंदगी में पहली दफा किसी से मोहब्बत हुई है, खोने का हौसला नहीं है। तुम खुद गर्ज कह लो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं उसामा से मोहब्बत करती हूँ। अगर उसे छोड़ भी दिया तब भी इसी से मोहब्बत रहेगी। मुझे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए मुझे जाने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नफरतों से एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, तब तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँगा। वो वसुक से बोला था, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा ये। वो चिल्लाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सोचो अगर तुम रात को घर से बाहर रही तो माशरा तुम्हारी फैमिली के साथ क्या सलूक करेगा। माशरे को छोड़ दो, उसामा और उसकी फैमिली वो क्या करेंगे? उसामा ऐसी लड़की से शादी कर लेगा क्या? सोचो इस बारे में। तुम डरा रहे हो मुझे? डरा नहीं रहा, आने वाले वक्त से आगाह कर रहा हूँ, आगे फैसला तुम्हारा है। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? उसका लहजा सवालिया था। तो फिर जिल्लत के इस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाना, जिसमें से उठाने और बाहर निकालने के लिए तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा, और इस गड्ढे में तुम अकेली नहीं गिरोगी, तुम्हारा पूरा खानदान गिरेगा। सुनने में आया है तुम्हारे भाई की शादी भी तुम्हारे साथ होनी है। अब तुम्हारे साथ इतना सब होगा तो उसकी जिंदगी भी मुतासिर होगी, उस बेचारे को भी अपनी मोहब्बत से हाथ धोने पड़ेंगे। एक तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, तुम्हारी फैमिली में दरार पड़ जाएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सफाकियत से कहते वो दरवाजे की जाने बढ़ा। तो मेरे उसामा से तलाक लेने से भी दरार पड़ जाएगी, मेरी फैमिली का शराजा बिखर जाएगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तुम बहुत घटिया हो अरसलान, तुम सारी जिंदगी मेरी नफरत सहोगे, तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी नसीब नहीं होगी। फुट फुट कर रोते हुए वो चिल्लाई थी। मुझे मंजूर है, कहकर वो बाहर निकल गया था। तुम्हें याद है ना कि क्या करना है? उसके घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उसने पूछा। हाँ याद है, तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तल्ख लहजे में कहकर वो गाड़ी से उतर गई थी। घर के अंदर जाने तक वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा और फिर जुन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। गेट से अंदर दाखिल होते ही एक आंसू उसकी आंख से टपका था, कोई देख ना ले इसलिए जल्दी से चेहरा थपथपाकर वो अंदर की जाने बढ़ी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। वो 9 बजे से गायब थी और अपनी गुमशुदगी का कोई ना कोई बहाना उसे घड़ना था। यही सोचते जब वो हॉल में दाखिल हुई तो सबको अपना मुंतजिर पाया। रिमशा और फौजान भी इधर ही थे। सामिया बेगम की नज़र जैसे उस पर पड़ी तीर की तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। कहाँ थी तुम? आधे घंटे का कहकर गई थी और अब 7 घंटे होने को आए हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? एक दोस्त की तरफ चली गई थी, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और अभी इतनी देर भी नहीं हुई जो आपको परेशानी होने लगी। उसने मुतमईन नजर आने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, मेरे लिए थी। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी तुम, मेरा दिल अंदेशों में घिर गया था। आप खामखा परेशान हो रही थी। मेरी क्लास डेट ख़त्म हुई थी। फिर दोस्त की इसरार पर उसके घर कार्ड देने चली गई। मोबाइल पर्स में था, देखा नहीं कि किसी की कॉल आ रही है, और कुछ कहकर वो कमरे की जाने बढ़ी। उसके लहजे ने एक लम्हे को सबको ही चौंकाया था, फिर वहम समझकर इग्नोर कर दिया था। और ये आई किसके साथ हो तुम? सादिया बेगम चुपते लहजे में पूछ रही थी। वो एक लम्हे को सिटपटाई थी मगर दूसरे ही लम्हे गुस्से से बोली, दोस्त का भाई था, इस वक्त रश होता है तो ट्रांसपोर्ट का मिलना मुश्किल था, इसलिए वो छोड़ने आ गया। कुछ गलत किया क्या उसने? इजाजत लेने आता पहले आपसे, फिर छोड़ने आता। ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? इसी लहजे में जिसमें आपने पूछा था, कहकर वो चली गई थी। आपने देखा अब्बा जी, इसने किस लहजे में बात की है मुझसे? वो हकीकतन शौक में थी। आज तक परी ने इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। फिर आज क्या हुआ था? थकी हुई आई है और तुमने आते ही बहस शुरू कर दी। और ऐसा भी उसने कुछ नहीं किया। उसने वो बुर्दबारी से बोले थे। मैं भी किससे कह रही हूँ? आज तक आपने उसकी कोई गलती तस्लीम की है जो आज करेंगे? वो गुस्से से बोली। उनके लहजे पर उन्होंने चौंक कर देखा था उसे। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंसू निकल आए थे। उसकी बर्दाश्त बस यहाँ तक ही थी। उसका दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए। ये उसने क्या कर दिया था? अपने दिल की दुनिया को अपने हाथों से बर्बाद करने जा रही थी। वो इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई थी? वो उसकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में ये तूफान क्यों आया था? मंजिल के इतने पास आकर भी क्या वो तही तमाम रहने वाली थी? कैसे अपने दिल पर पाँव रखने चली थी? वो सोच सोच कर उसका दिल बंद हो रहा था। घुटी घुटी चीखें कमरे में फैल रही थीं। इज्जत के खौफ ने मोहब्बत हरा दी थी। परी का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ गई थी वो? हमें कभी बताया तो नहीं उसने। लॉन में बैठे वो दोनों चाय पी रहे थे, जब ही रिमशा ने पूछा, होते हैं कई दोस्त कॉलेज लाइफ में, अब क्या सबके बारे में तुम्हें बताए? फौजान ने चिस्कियां देते हुए कहा, जिक्र तो करती ना, और मुझे तो नॉर्मल भी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें भी सुर्ख थीं। तुमने नोट किया? वो पुरसोच लहजे में दोबारा बोली। नहीं, मैंने नहीं नोट किया, क्यों? तुम्हारी तरह मुझे इतनी जासूसी की आदत नहीं है। वैसे एक मशवरा दूं,
तुम सीक्रेट एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? जासूसी तो तुम वैसे भी बहुत अच्छी कर लेती हो। जासूसी नहीं कर रही, बस कज़न है हमारी, तो इसलिए जानना चाह रही थी कि क्या उसे परेशान कर रहा है। वो गुस्से से बोली, बंदे के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अब हर चीज़ तो नहीं बता सकती तुम्हें, और अगर उसे ज़रूरी लगा बताना तो बता देगी। तुम मॉम की तरह टो लेना छोड़ दो। वो उकताए हुए लहजे में कहता उठ गया था वहाँ से, जबकि वो वहीं बैठी कुछ सोच रही थी। उसने डिनर भी नहीं किया था। कमरे का दरवाज़ा बंद किए वो मुसलसल रो रही थी, मगर आंसू देखे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। 2 दफ़ा सामिया बेगम आ चुकी थी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर उसका ये कॉल अटेंड करने का हौसला नहीं हो रहा था। जब दूसरी तरफ से भी हिम्मत नहीं हारी गई तो उसने कॉल अटेंड कर ली। हेलो परी, तुम सुन रही हो मुझे? हेलो। जब वो कुछ ना बोली तो दूसरी से पूछा गया था, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? कुछ हुआ है क्या? उसामा की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। ना जाने कितने आंसू गालों पर लड़क आए थे। आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाते हुए वो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं हुआ, वॉशरूम में थी इसलिए देखा नहीं। वो जानती थी वो परेशान हो रहा होगा, इसलिए उसकी परेशानी दूर करना चाहिए, जबकि वो उसकी आवाज़ के भारीपन पर ही ठटक गया था। तुम रोई हो? मैं क्यों रोऊंगी भला? उसका दिल चाहो उसे सब कुछ बता दे, मगर दिल की हर तो नहीं सुनी जा सकती। तो फिर आवाज़ क्यों इतनी बोझल हो रही है? किसी ने कुछ कहा है या मुझसे कोई नाराज़ हो? वो बेचैनी से पूछ रहा था। तुमसे नाराज़ नहीं, और ना ही किसी ने कुछ कहा है। फ्लू है मुझे, तो इसलिए ऐसी आवाज़ लग रही है। मेडिसिन ली तुमने? डॉक्टर के पास जाना था ना? उसके लहजे में उसके लिए परेशानी थी। अगर वो सब कुछ उसे बता दे, अपना फैसला बता दे, तो क्या तब भी उसके लहजे में मेरे लिए इतनी ही फिक्र होगी? और अगर उसने मुंह मोड़ लिया मुझसे, तो फिर? सोचकर ही उसका दिल कांप उठा था। बताने का इरादा खुद ही मुलतवी हो गया था। हेलो, कहाँ चली गई हो परी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसामा की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई थी। वो बेसाख्ता गड़बड़ाई थी। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, पक्का ना? उसने यकीन दहानी चाहिए थी। हाँ ना, पक्का ठीक हूँ। अब पहले से तुम कैसे हो, और कल आ जाओगे ना? वो उसे मुतमिन करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। आज एक लड़का शहीद हुआ है, अपने घर का वाहिद कमाने वाला था। 3 बहनें उसके सहारे थीं और अब बेसहारा हो गई। सफ़े मातम बिछा होगा उनके घर। उसकी अम्मी की हालत भी ख़राब है। ये सब कुछ मेरा दिल बोझल कर रहा है। बोलते बोलते उसके लहजे में बोझलपन आ गया था। उसका ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं था। वो तो कुछ और सोच रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी पर उसने पूछा था, कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? उसकी गायब दमागी महसूस करके वो भी खामोश हो गया था। कुछ देर बाद वो बोला, तुम आराम करो, मैं फिर कॉल करूँगा, और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। धीमे से कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया था और लेट कर आंखें बंद कर लीं। उसामा से बात करके उसका दिल मज़ीद बोझल हो गया था। वो नहीं जानती थी कि सुबह एक नई खबर उसकी मुंतज़िर होगी। रात के किस पहर आज़म साहब की आंख प्यास लगने की वजह से खुली तो रुकैया बेगम को जागता पाया। सोई नहीं अभी तुम? उन्होंने हैरानी से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है। उन्होंने जवाब दिया। कैसी बेचैनी? ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं? वो परेशानी से पूछ रहे थे। नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है, वैसे ही अभी सो जाऊंगी। आप क्यों जाग गए? मुझे तो प्यास लगी थी इसलिए आंख खुल गई। अभी सो जाऊंगा, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो बताना मुझे। कहते हुए उन्होंने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया था। सो जाए आप, मेरी तबीयत ठीक है अब। वो लेटते हुए बोली। वो करवटें बदलती रही, मगर नींद थी कि आ ही नहीं रही थी, और बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था। अजीब सी जगह थी, हर तरफ धुंध छाई हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका दिल घबराने लगा। अचानक इस धुंध में उसामा का चेहरा दिखाई दिया था। इन्हें वो तेजी से उसकी जानिब बढ़े, मगर इन्हें रुक जाना पड़ा। धुंध का रंग तब्दील होने लगा था। अचानक से उसमें सुर्खी घुलने लगी थी। आसमां से सुर्ख रंग की बर्फ गिरने लग पड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे खून हो। उन्होंने उसामा को देखा। आसमां से गिरती बर्फ उसे भी सुर्ख किए जा रही थी। वो ऐसा ऐसा इस सुर्ख रंग में गुम होता जा रहा था। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़े थे। उसामा, मेरे बच्चे। मगर वो जितना आगे जाते थे, बर्फ की तहें इन्हें उतना ही पीछे धकेल रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर उसामा को पुकार रहे थे, जो उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। अचानक उसकी आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी। परी का ख्याल रखिएगा दादाजी। सुर्ख बर्फ ने उसका चेहरा भी निगल लिया था। अब वहां सवाए सुर्खी के कुछ नहीं था। वो चिल्ला कर भागे थे। उसामा, पुकारते हुए वो बेड पर उठ बैठे थे। उनका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। क्या वो ख्वाब देख रहे थे? इतना भयानक ख्वाब सोचकर बेसाख्ता वो थर्रा उठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। शुक्र है ये सिर्फ एक ख्वाब था, हर ख्वाब सच थोड़ी होता है। उन्होंने खुद को तसल्ली दी थी। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, मेरे उसामा की हिफाजत करना मेरे रब। उनके रुआ रुआ ने दुआ की थी। बेड से उठते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़े थे। इन्हें तहज्जुद पढ़नी थी, इस ख्वाब के सच न होने की दुआ करनी थी। पता नहीं वो लोग जो दिल के करीब होते हैं, उन पर जब कोई मुसीबत आए तो दिल को खबर हो जाती है, ना जाने कैसे। उसकी आंख दरवाजे की धड़धड़ाहट पर खुली थी। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। रात के किस पहर उसकी आंख लग गई थी, और अब उसने घड़ी की जानिब देखा। 8 बज रहे थे। मोबाइल उठाया तो अरसलान का मैसेज आया हुआ था। भूलना मत कि तुम्हें क्या करना है, अपना वादा याद रखना।
ورنہ मैं भी भूल जाऊंगा। पढ़कर उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंका था और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही उसे वली का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उसे देखकर ठटक गई थी। दिल ने बेसाख्ता किसी अनहोनी की खबर दी थी। क्या हुआ है वली, तुम रो रहे हो? अंदेशों में घिरते हुए उसने इस्तफसार किया। चलो, दादा बुला रहे हैं तुम्हें, बोझल लहजे में कहते हुए उसने आंखों की नमी छुपाई थी। परी ने उसका बाजू पकड़ लिया था। क्या हुआ है उसामा, ठीक है ना? नहीं, उसामा हमें छोड़कर चला गया है परी। वो रो दिया था। उसके जवाब ने उसकी जान निकाल दी थी। वो बेसाख्ता जमीन पर बैठ गई थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसे मजाक नहीं पसंद मुझे। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। वो जानती थी अभी वो हंसते हुए कहेगा मैं मजाक कर रहा था, और फिर कहीं से सब हंसते हुए सामने आ जाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ परी, उसके साथ जमीन पर बैठते उसने कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी उससे। वो कह रहा था, आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वो कह रहा था वो मुझसे बात करेगा, उसने इस कॉल करनी है, कल हमारी शादी है, उसने आना था। वो वो तुम झूठ बोल रहे हो, वो चिल्लाई थी। परी अपने साथ लगाते उसने उससे सहारा दिया था। उसे सब झूठ लग रहा था, पर अगर झूठ था तो वो रो क्यों रहा था? उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने तो अभी बात करनी थी उससे, और ये सब क्या हो गया था? वो चिल्ला चिल्ला कर रो दी थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब वहां आ गए थे। उसके रोने की दिलगीर आवाज़ ने सबके कलेजे चीर दिए थे। सामिया बेगम ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया था। उनके खुद के आंसू बेकाबू होकर बहे चले जा रहे थे। परनिया के हस्बैंड की डेथ हो गई है। कॉल अटेंड होते ही सुफियान की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। क्या? कैसे? उसे हकीकतन शौक लगा था। कल रात सर में गोली लगने से शहादत हुई है। परी कैसी है अब? और उसके घर वाले? उसकी हालत का सोचकर कि वो बेचैन हो उठा था। वो तो उसामा से इतनी मोहब्बत करती थी। उसकी शहादत की खबर ने उसकी क्या हालत की होगी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अभी ये खबर मिली है। मालूम करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ, कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी। जबकि वो अभी तक शौक में था। ठीक है, वो उसे अपना रकीब समझता था, पर उसने कभी नहीं चाहता कि वो मर जाए। वो उसे परी से दूर जरूर करना चाहता था, मगर ऐसे नहीं। उसकी मौत का सुनकर उसे दुख हुआ था। हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में वो पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। परी के अचानक बेहोश हो जाने की वजह से वो सब घबरा उठे थे और उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल भागे थे। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और अब वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। उसकी कंडीशन सीरियस थी। बाकी सब घर वाले चले गए थे। रुकैया ताई की हालत बहुत खराब थी, बार बार बेहोश हो रही थी। उसामा की बॉडी आ गई थी, तब से वो मुसलसल बेहोश थी। वो कॉल करके वहां की भी खबर ले रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, और उसामा उसके बारे में सोचकर ही उसका दिल दुख से भर गया था। परी के नर्वस ब्रेकडाउन की खबर सुनते ही वो भागा भागा वापस आया था। उसे भूल गया था कि मीटिंग ना होने की वजह से उसे कितना लॉस होगा। पाकिस्तान वापस आते ही वो सीधा हॉस्पिटल आया था। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसे परी की फैमिली मेंबर्स नजर आए थे। वो भागता हुआ उनकी जानिब बढ़ा। परी कैसी है अब? उसने बेचैनी से पूछा। उसकी आवाज पर सबने उसे देखा था। तुम कौन हो? तैयब ने उसे देखते हुए पूछा। मैं? वो सोच में पड़ गया था कि इन्हें क्या बताए कि वो कौन है। अगर सच बताता तो परी मुश्किल में पड़ सकती थी, और वो उसे परी से मिलने भी ना देते। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयां देखकर रियाज साहब बोले, कौन हो बरखुरदार, और परी को कैसे जानते हो? उनके चेहरे की तरफ देखते हुए इजाजत तलब लहजे में बोला, दादाजी मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। उसने उनकी तकलीद की, जबकि वो दोनों वहीं खड़े इन्हें जाता हुआ देख रहे थे। कहो। हॉस्पिटल के बाहर खड़े वो उससे पूछ रहे थे। एक नज़र इन्हें देखने के बाद उसने सर झुका लिया था। फिर आहिस्ता आवाज में इन्हें सब बता दिया। वो खामोशी से उसे सुन रहे थे। जब वो सब बता चुका तो पूछा, अब क्या चाहते हो तुम? उनके लहजे में गुस्सा नहीं था। आप यकीन करें, मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं परी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस उसे पाना चाहता था। उसे या आपकी बाकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना मेरे इरादों में शामिल नहीं था, और ना है। वो सफाई देते हुए बोला, जानता हूँ, पर जो तुमने किया वो गलत था। गहरी सांस भरते हुए वो आहिस्ता से बोले, मैं मानता हूँ आप चाहें तो मुझे सजा दे लें, मगर परी से एक दफ़ा मिलने दे मुझे। उसके लहजे में लजादत थी। वो कुछ नहीं बोले थे, बस खामोशी से खड़े कुछ सोच रहे थे। भाभी कुछ खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया, सादिया रुकैया के सामने खाना रखते हुए बोली। उन्होंने खामोशी से इन्हें देखा था, बस कोई लफ्ज़ कोई बात उनके मुंह से नहीं निकली थी। कल से उनकी यही हालत थी। उसामा को पूरे एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया था। उसका जनाजा उठते वक्त वो बेहोश हुई थी, और होश में आने के बाद से अब तक कुछ भी नहीं बोली थी, बस कलाओं में घुरती रहती थी। उनकी हालत से सब परेशान थे। परी की हालत भी सही नहीं थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर्स ने उसकी मुसलसल बेहोशी को खतरनाक बताया था। उनका एक मुश्किल वक्त चल रहा था। सबकी आंखें नम रहती थीं। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के चक्कर लग रहे थे। तैयब और आफाक मुस्तकिल हॉस्पिटल में ही थे। आज मेरे बेटे की शादी है, उसे दूल्हा बनना है। साथिया देखो वो आ गया है, उसे कहो मुझे भी तैयार होने दे। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात लेकर जानी है। चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। बेरब्तगी से कहते हुए वो तेजी से बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। साथिया बेगम अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए उन्हें संभालने लगी थी। वो आया था भाभी, और चला भी गया है। आपका उसामा चला गया है भाभी। वो रो दी थी। क्या कह रही हो तुम सादिया?
मेरा बेटा मुझे मिले बिना कभी नहीं गया और आज तो उसकी शादी है, आज क्यों जाएगा मेरे बिना। वो बुड़बुड़ा रही थी, फिर चिल्लाकर रोने लगी, मेरा उसामा, मेरा बच्चा, मुझे मेरे उसामा के पास जाना है, उसामा मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे छोड़कर क्यों चले गए उसामा। उनकी हालत ने दरवाजे में खड़ी रिमशा की आंखें नम कर दी थीं। नम आंखों से उन्हें देखते वो सोच रही थी कि लोग क्यों कहते हैं कि क्या करती है आर्मी हमारे लिए, आकर देखें कि क्या करते हैं वो हमारे लिए। और जो कहते हैं कि वो पैसे लेते हैं आए और ले जाएं, वो पैसे जो इन्हें मिलते हैं और कुर्बान कर दें अपनी जान इस मुल्क के लिए, अगर इनमें हिम्मत है तो। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पैसों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। पैसे तो दूर, अगर पूरी दुनिया भी दे दें तो कोई भी अपनी जान नहीं देगा। ये जज्बा सिर्फ वतन से मोहब्बत करने वालों में होता है, जो बिला मुआवजा अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। बाकी बातें करने वाले पैसों के लिए दूसरों की जान तो ले सकते हैं, मगर खुद की जान नहीं दे सकते। अब्बा जी, आजम साहब कमरे में दाखिल हुए तो इन्हें खिड़की के सामने खड़ा देखा, मगर वो मुतवज्जो नहीं हुए थे। उन्होंने जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया तो वो चौंके। हाँ, आंसू उनके बूढ़े झुर्रियों भरे गालों पर बह रहे थे। इन्हें देखकर आजम साहब भी रंजीदा हो गए थे। परेशान ना हो अब्बा जी, अल्लाह की चीज थी, उसने ले ली, वही हमारे दिलों को सब्र भी देगा। जब्त करते हुए भी आंसू बह निकले थे। कैसे परेशान ना हूँ, रुकैया और परी की हालत देखता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। और उसामा, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा था, तुम सबसे ज्यादा प्यारा था मुझे। वो अभी तो मेरे जाने की उम्र थी, वो क्यों चला गया मुझे छोड़कर। आप ही तो कहते हैं कि शहीद की मौत पर रोते नहीं हैं, सब्र करते हैं, सबको सब्र आ जाएगा। बस आप यकीन रखें कि वो यहाँ से ज्यादा वहां पुरसकून है। इस उसके लिए दुआ करें अब्बा जी। मेरी परी का क्या होगा आजम? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसामा मुझ पर छोड़कर गया है। पता नहीं मैं ये जिम्मेदारी निभा भी पाऊंगा या नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो परी का ख्याल तुम रखोगे आजम। अल्लाह आपको सलामत रखे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं। वो तड़प उठे थे, अभी तो वो बेटे के गम, मौत का गम बर्दाश्त कर रहे थे, और अब बाप, तुम जाओ आजम, रुकैया का ख्याल रखो, जाओ तुम। वो दोबारा रुख मोड़कर खड़े हो गए थे। आजम साहब खामोशी से बाहर चले गए। कैसी हो तुम परी? उसके सरहाने खड़ा वो पूछ रहा था। उसकी हालत देखकर एक लम्हे को उसे धचका लगा था। 2 दिन में ही वो सदियों की बीमार लग रही थी। परी, वो कुछ नहीं बोली थी। उसामा से इतनी मोहब्बत करती हो कि वो नहीं रहा, तुमने भी जीने की आस छोड़ दी। हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उसामा से, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ गया। तुम हो इस सब के पीछे, अब तो खुश हो ना? उसामा का नाम सुनते ही वो चिल्लाई थी। मैंने ऐसा नहीं चाहा था परी। हाँ, रकीब समझता था, मैं उसे चाहता था कि वो हमारे दरमियान से चला जाए, पर मैंने कभी उसकी मौत नहीं मांगी थी। जाओ यहाँ से, तुमने जो चाहा था वो हो गया है। मुझे उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई, वो खुद ही मुझे छोड़कर चला गया है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब मेरी जान छोड़ दो तुम। नजरों का रुख मोड़ते हुए उसने जाने का अंतिया दिया था। परी, मैं, वो कुछ कहना चाह रहा था जब वो उसकी बात काट कर चिल्लाई, अब क्या चाहते हो, मैं भी मर जाऊं? ऐसे ना कहो, मैं जा रहा हूँ। वो तड़प उठा था उसके मुंह से ये सुनकर कि आखिरी नजर उस पर डाली थी, और फिर तेजी से निकल गया था, जबकि उसके आंसू बेआवाज बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। उसे घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। ऐसा ऐसा सब मामूल पर आ रहा था, मगर इस घर की वीरानियां वैसे की वैसे ही थी। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबे लॉन को देखा था। हर चीज से वीरानी और उदासी टपक रही थी। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब इस घर में खुशियां रक्स करती थीं। हर तरफ कहके थे, और अब सब एक दूसरे से नजरें चुराए घूमते थे। खिड़की से सर टिकाए वो बीते वक्त को याद कर रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, मैं इंतजार करती रह गई, और तुमने कॉल नहीं की। तुम बात करना चाह रहे थे, मगर मैंने क्या किया, तुम्हें शायद अंदाजा हो गया था कि हम दोबारा बात नहीं कर पाएंगे, हम मिल नहीं पाएंगे कभी। तभी तुम रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। मैं तुम्हें आखिरी दफा देख भी नहीं पाई उसामा। तुमने इतनी जल्दी क्यों की जाने में, मेरा इंतजार तो करते। वो बेआवाज रो रही थी। दूर आसमां पर चमकता चांद भी उदासी से उसे देख रहा था। वक्त का काम है गुजरना, अच्छा हो चाहे बुरा, वो गुजर जाता है। आज 5 माह हो गए थे उसामा को गए। इस वक्त में काफी तब्दीलियां आई थीं। रायना ब्याह कर इस घर में आ गई थी। उसामा के जाने के 2 माह बाद ही दादाजी ने खामोशी से उनकी शादी करा दी थी। उसके आने से घर का माहौल काफी बदल गया था। दोनों घरों में एक नामहसूस सी दूरी आ गई थी। उसका ज्यादातर वक्त कमरे में ही गुजरता था, मगर वो महसूस कर रही थी कि रिमशा और फौजान अब कम कम आते थे, और अगर आ भी जाते तो ज्यादा देर बैठते नहीं, जबकि पहले वो पूरा दिन यहीं पाए जाते थे। हाँ, सादिया फूफो अब अक्सर रुकैया ताई के पास आती थी। कभी कभी उसके पास भी चक्कर लगा जाती थी। मेरे भाइयों जैसे कजन की डेथ हो गई, मेरी बहन बेवा हो गई है, और तुम्हें हनीमून पर जाने की पड़ी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब कैसे हालात से गुजर रहे हैं? तैयब की आवाज ने उसके कदम रोक दिए थे। तो मैं क्या करूं अब? पहले ही तुम्हारे खानदान की वजह से शादी खामोशी से हुई, कितने अरमान थे मेरे, और अब तुम हनीमून पर भी नहीं लेकर जा रहे। वो बदतमीजी से बोली। कह तो रहा हूं कि घर के हालात ठीक होते ही ले जाऊंगा, तुम थोड़ा सब्र कर लो। वो उसे समझाते हुए प्यार से बोला। और कितना सब्र करूं, 4 माह होने वाले हैं हमारी शादी को, और अभी भी तुम्हें जल्दी लग रहा है। अगर तुम मुझे अभी लेकर नहीं गए तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। बैठकर मनाते रहना तुम सो, क्योंकि मुझे
मुझसे तो सारी उम्र का शोक मनाया नहीं जाता। रायना की तेज आवाज उसके कानों से टकराई थी। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चलती थी। अब बस अब्बा जी बहुत हो गया। हमेशा परी परी परी। आपने परी के पीछे हमेशा मेरे बच्चों को डिग्रेड किया है, हमेशा मेरी बेटी का हक भी उसे दिया, और अब आप वलीद भी उसे देना चाहते हैं। सादिया बेगम गुस्से से बोल रही थी। जब से उन्होंने सुना था कि वलीद से परी के निकाह के बारे में सोचा जा रहा है, उनके अंदर आग लगी थी। कैसी बातें कर रही हो सादिया? मुझे अपने सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबसे एक जितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। परी अगर मौसम की बेटी है तो रिमशा तुम्हारी बेटी है, नवासी है मेरी। मुझे दोनों बहुत प्यारी हैं। तुम्हें ये क्यों लगता है कि परी ज्यादा प्यारी है मुझे? कभी मैंने दोनों में फर्क किया? रियाज मलिक तहम्मुल से बोले। यही तो मैं कह रही हूँ कि रिमशा मेरी बेटी है, एक लौती नवासी है आपकी। आप कैसे उसका हक अपनी पोती को दे सकते हैं? मैं किसी का हक किसी को नहीं दे रहा, जिसका है वो उसी को मिलेगा। आजम ने बस एक बात की थी जो खत्म भी हो गई। तुम खामखा बहस कर रही हो। आजम भाई की भतीजी नजर आ गई, भांजी नजर नहीं आई। पहले भी उसामा के लिए आपने परी को चुना। आपको यह डर था कि इस घर की इकलौती बेटी कहीं ना जाए। तब भी आपने ये ना सोचा कि मेरी भी इकलौती बेटी है, मैं भी उसे दूर नहीं भेजना चाहती। मगर मैं तब खामोश रही थी, अब नहीं रहूंगी। मेरी नंद रिमशा का रिश्ता लेकर आई तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम तो परी को बहू बनाना चाहते थे, मगर जो किस्मत को मंजूर। सबको हमेशा परी नजर आती है, मेरी बेटी क्यों नहीं? ऐसा क्या है परी में जो मेरी बेटी में नहीं? पता नहीं कितने सालों का गुबार था जो वो आज निकाल रही थी। परी के लिए तो वैसे भी लड़कों की कमी नहीं है, अदाएं दिखाकर हर एक को पीछे लगा लेती है। उस लड़के से ही क्यों नहीं ब्याह देते जो हॉस्पिटल में मिलने आया था? कोई ना कोई चक्कर तो होगा जो वो यूं हॉस्पिटल तक पहुंच गया। और वो जो उसे घर छोड़ने आया था वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि दोस्त का भाई है आप लोग। वो कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर मौसम साहब की आवाज ने उन्हें रोक दिया। बस कर दे आपा, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो ऐसी नहीं है। आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच्चाई है, ये इल्ज़ाम नहीं है। अपनी बेटी को संभाल कर रखो, कल को कोई चांद ना चढ़ा दे। वो आज चुप होने वालों में से नहीं थी। बस आप कम से कम इतना ही एहसास कर लेती कि वो आपके भाई की बेटी है, कितने बड़े सदमे से गुजर रही है, और आप वो बात अधूरी छोड़कर चले गए। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि बाकी सबने मलामत ज़्यादा नज़रों से सादिया बेगम को देखा था, जो अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। कैसी हो रिमशा? वो इतने दिनों से इसे मिलने नहीं आई थी, वो खुद ही चली आई उसे देखने। फूफो घर पर नहीं थी तो वो रिमशा के कमरे में ही चली आई। उसने कोई जवाब ना दिया था, बस जमीन पर बैठी घूर रही थी। परी ने उसे मुतवज्जो करने के लिए जैसे ही उसका कंधा हिलाया तो वो चिल्ला उठी, हाथ मत लगाओ मुझे और दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसके लहजे पर ही हैरान रह गई थी। उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ नफरत बोल रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? नाराज हो मुझसे? अगर नाराज हो तो मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारी पसंद का केक खिलाऊंगी तुम्हें। अब मान जाओ जल्दी से। उसका हाथ पकड़ते हुए वो लजाजत से बोली थी। रिमशा ने उसका हाथ झटक दिया था और खड़े होते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा केक, तुम्हारी दी हुई भीख नहीं चाहिए मुझे, सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो हैरान थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। आज तक उसने रिमशा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इतनी मासूम मत बनो परी, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो जहर खान लहजे में बोली थी। मुझे सच में कुछ नहीं पता। कोई गलती हुई है क्या मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। मॉम हमेशा कहती रही है कि तुमसे दूर रहूं, मगर मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में क्या नुकसान हो सकता है? पर मैं गलत थी। तुम कुछ भी थी पर मेरी दोस्त नहीं थी। तुम्हें हर जगह फौकियत दी गई। तुम्हारे पास जहानत, शक्ल और सूरत, हर वो चीज़ थी जो सराही जा सके, मगर मैंने कभी हसद नहीं किया। तुमसे वो हर चीज़ जो मुझे पसंद होती थी वो तुम्हें मिल जाती थी, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मगर अब की बार तुमने मेरे दिल पर वार किया है परी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी तुम? वो रो रही थी, जबकि वो साथ खड़ी उसका चेहरा देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया रिमशा, तुम्हें कोई। रिमशा उसकी बात काट कर चिल्लाई थी, जाओ यहाँ से, और उसे कमरे से निकालकर जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। उसके रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसे नहीं मालूम कब आंसू उसकी खुद की आंखों से बहना शुरू हुए। कैसे वो घर पहुंची वो नहीं जानती थी, वो वाकई नहीं जानती थी। क्या हुआ परी? ऐसे क्यों कमरा बंद किए बैठी हो मेरी बच्ची? सामिया बेगम ने प्यार से उसकी पेशानी चूमते हुए पूछा। अम्मी, कुछ हुआ है क्या घर में? रोई रही आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इस हालत में देखकर इनका कलेजा मुंह को आ गया था। उनकी इकलौती बेटी थी और वो कैसे इसे इस हाल में देख सकती थी? अम्मी, रिमशा ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसके दिल पर वार किया है? मैंने तो उसे हमेशा बहन समझा है, दोस्त है वो मेरी। मैं क्यों करूंगी ऐसे? बोले ना अम्मी। वो खोई खोई लहजे में पूछ रही थी। कुछ नहीं किया तुमने। इन माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे ताया ने एक बात की थी बस, और तुम्हारी फूफो ने तो महाजी खोल लिया था तुम्हारे खिलाफ। वो तलखी से बोली। कौन सी बात? उनकी उसकी आंखों में उलझन थी। वो सारा दिन कमरे में गुजारती थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है। वो चाहते थे कि वलीद की और तुम्हारी शादी कर दी जाए ताकि तुम इसी घर में रह जाओ, लेकिन तुम्हारे दादा ने इनकार कर दिया।
کہ ولید اور رمشا کی نسبت طے ہے اور وہ ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بات سعدیہ کو بتا دی۔ اس نے آ کر وہ الزامات لگائے کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ تمہارے دادا کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں، مگر وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی تو اسامہ کو گئے چند ماہ ہوئے ہیں اور آپ کو میری دوسری شادی کی پڑ گئی ہے، اور وہ بھی ولید کے ساتھ۔ وہ بھائیوں جیسا ہے میرے لیے۔ آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسے؟ سب محبت کرتے ہیں تم سے، اس لیے تمہاری بھلائی کو ایسا سوچ رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی ہے نا تمہاری۔ ابھی نہیں کرنی مجھے شادی، آپ بس اس ٹاپک کو کلوز کر دیں، اور ولید اور میری شادی کے بارے میں تو سوچیے گا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیسے ہو یار، تم تو بالکل ہی بھول گئے ہو، سفیان نے بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ بھولا نہیں ہوں، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ تیری طرف آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بتا کیا لے گا؟ وہ انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ دوستوں کو ہی بھول جائے۔ چلو ملنا تو دور، ایک کال ہی کر لیتے، یا وہ بھی نہیں کر سکتے تھے؟ شکوے بعد میں کر لینا، ابھی تو یہ بتا کہ چائے لے گا یا کافی؟ کافی منگوا لے پھر۔ کافی کا کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو سنا کیا چل رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، وہی نارمل روٹین۔ تیری پری کا کیا بنا؟ دوبارہ اس سے بات ہوئی؟ میری کہاں ہے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس سے پہلے ہی ناراض ہے، مزید ہو جائے گی، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب آگے کی سوچو۔ تم نے صحیح کہا تھا، محبتوں میں انا یا جیت ہار نہیں ہوتی۔ افسوس کہ مجھے سمجھنے میں دیر لگی، پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ تو نے اس کے دادا سے بات کی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ کافی آ گئی تھی اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کی تھی پھر کچھ نہیں، وہ یہ سب جاننے کے بعد اپنی پوتی کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ پہلے اتنا سب کچھ کیا اور اب خاموشی سے ہار مان جاؤ گے، حالانکہ اب تو تمہارے پاس چانس بھی ہے۔ چھوڑو اس ٹاپک کو یار، مجھے پہلے ہی اپنے کیے پر افسوس ہے، مزید نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہوئے اس نے کافی کا کپ منہ سے لگایا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پری وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب رائنا نے اسے پکارا۔ جی کوئی کام ہے کیا؟ پلٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے تم سے، بس کچھ پوچھنا تھا۔ پوچھے۔ پھول کسی لڑکے کا کہہ رہی تھی کہ پھوپھو ہاسپٹل میں آیا تھا تم سے ملنے۔ کون تھا وہ؟ چائے چھانتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا تھا، گرم چائے ہاتھ پر گر گئی تھی پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ او تمہارا ہاتھ جل گیا، ادھر دکھاؤ، دوا لگا دوں؟ ہمدردی سے کہتے اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا۔ نہیں رہنے دیں۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ہاتھ نرمی سے چھڑاتے اس نے استفسار کیا۔ تمہاری پھوپھو ہی کہہ رہی تھی کہ تمہارا چکر چل رہا تھا کسی لڑکے سے اور وہ ہاسپٹل بھی آیا تھا، سچ ہے کیا یہ؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہاسپٹل کون آیا تھا۔ اسے اذیت ہوئی تھی یہ سب سن کر۔ لو وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی اسی سے کروا دیں، یہ نہ ہو کہ تم کچھ غلط کر بیٹھو۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو میرے پاس ایک رشتہ ہے تمہارے لیے، میرے بھائی جان ہیں، عمر تھوڑی سی زیادہ ہے پر اتنی عمر کے لگتے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تم سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ آنٹی سے بات کی تھی مگر وہ تو سنتے ہی بھڑک اٹھیں کہ میری بیٹی کے لیے ایسے لڑکے ہی رہ گئے ہیں۔ بھائی اب تمہیں برا لگے تو لگے، مگر میں سچ کہوں گی اب تمہارے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ عین شادی والے دن تم بیوہ ہو گئیں، اب ایسی لڑکی کو کون بیاہ کر لے کر جائے گا؟ اچھا تم سوچنا ضرور اور آنٹی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ بظاہر ہمدردی جتاتے وہ چلی گئی تھی جبکہ وہ وہیں ساخت کھڑی تھی۔ تم کیوں چلے گئے اسامہ؟ دیکھو سب کتنی جلدی بدل گئے ہیں، میں اکیلی ہو گئی ہوں تمہارے بغیر۔ تمہیں معلوم ہے رمشا نے اور پھپھو نے مجھے غاصب کہا ہے، کیا میں غاصب ہوں؟ میں نے تو کبھی کچھ نہیں چھینا رمشا سے، پھر کیوں تمہارے جانے میں، میرے خوبصورت ہونے میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر میں مورد الزام کیوں؟ اور پھپھو انہوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے بظاہر پیار بھرے لہجے کے پیچھے اتنی نفرت چھپی ہے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ آپ کے اپنے آپ سے اتنی نفرت بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے جن رشتوں پر مان تھا وہ میرا مان یوں بھی توڑ سکتے ہیں۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا ہونا میرے لیے کتنا اہم تھا۔ کاش کہ تم جانے کی جلدی نہ کرتے، کاش کہ زندگی چند گھنٹوں کی فلم ہوتی اور ہم اختتام پر دونوں دوبارہ مل جاتے۔ کاش۔ اس کا دل دکھا تھا رمشا کا یہ روپ دیکھ کر۔ اسامہ کی تصویر تھامے وہ اس سے شکایتیں کر رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بعض دفعہ ہمیں واقعی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد موجود لوگ اپنے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت چھپا کر رکھتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تب وہ نفرت ہمارے وجود کو اپنے زہر سے نیلا کر دیتی ہے۔ دادا جی آپ نے بلایا مجھے؟ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ آؤ بیٹے، تم تو اپنے دادا کو بھول ہی گئی ہو، نہ روٹھے پن سے کہتے انہوں نے شکوہ کیا۔ ان کے لہجے پر وہ مسکراتی تھی۔ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں دادا جان، بس دل نہیں کرتا کمرے سے نکلنے کو، اور آپ بھی تو نہیں آتے مجھ سے ملنے، اس نے بھی جواباً شکوہ کیا۔ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بار بار سیڑھیاں چڑھ اتر نہیں سکتا، تم تو آ سکتی ہو نا اپنے بوڑھے دادا سے ملنے۔ وہ ہنس رہے تھے پر آنکھوں کی اداسی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی کہاں بوڑھے ہوئے ہیں دادا جان،
ऐसे ही खुद को बूढ़ा ना कहा करें वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। बूढ़ा तो हो गया हूँ, जवान औलाद की मौत कमर तोड़ देती है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। दादा जान उनके आंसू साफ करते वो भी रो दी थी। अरे मेरा बेटा रो क्यों रहा है? अब मेरे बेटे को रोना नहीं है, अब तो खुशियां मनाने के दिन है। अब तो मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, अब रोने के दिन खत्म होने को हैं। उसके सर को थपथपाते वो प्यार से बोल रहे थे, दुल्हन। उसने झटके से सर उठाकर उन्हें देखा। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? वो सर उठाए उनसे पूछ रही थी। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं बेटे, चाहे कितनी ही प्यारी हो। क्यों ना हो, एक न एक दिन इन्हें रुखसत करना पड़ता है। मैं अपने घर में ही हूँ, और कौन सा घर है मेरा? उसने यूं जाहिर किया, कोशिश की कि जैसे वो समझी नहीं। ये घर तुम्हारा नहीं है। मायका कभी भी बेटियों का घर नहीं होता, उनका असल घर तो उनका ससुराल होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब अपने घर चली जाओ। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ औरत मर्द के सहारे के बगैर गैर महफूज है। इसे सिर्फ लोगों की बातों का ही नहीं, उनकी निगाहों का भी सामना करना पड़ता है। और उस पर बातें करने वालों में सबसे पहले उसके अपने होते हैं। बदलते हालात आते हुए मौसमों का पता दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इन मौसमों की सख्ती बर्दाश्त करो, और वो भी अकेले। वो उसे समझा रहे थे, आप हैं ना मेरे साथ? फिर मैं अकेली कैसे हो गई? उसकी बात पर वो मुस्कुराए थे। एक ऐसे उम्र रसीदा दरख्त पर उम्मीद लगाए बैठी हो कि वो तुम्हें आने वाले तूफान से बचाएगा, हालांकि वो दरख्त तो खुद एक तेज झोंके से जमीन बोस हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अकेली तो नहीं हूँ। मेरे पास उसामा का नाम मौजूद है। मैं सारी उम्र उसके नाम के साथ गुजार लूंगी। उसामा अब नहीं है, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। तन्हा जिंदगी नहीं गुजरती, और एक औरत की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लड़की हूँ, औरत थोड़ी हूँ। उसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो संजीदा थे। अरसलान ने सब बता दिया है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो। उनकी बात पर परी ने शिकवा कना नजरों से इन्हें देखा। सब जानते हैं फिर भी? हाँ फिर भी। सब जानकर मुझे भी गुस्सा आया था, मगर फिर मैंने उसे माफ कर दिया। उसने जो किया उस पर उसे पछतावा है, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। कोई और सब जानते हुए तुमसे शादी नहीं करेगा। उसामा की शहादत में तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर लोग ये मशहूर कर चुके हैं कि तुम सब्ज कदम हो। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी? गारंटी तो किसी बात की नहीं होती, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। आप माफ़ कर सकते हैं उसे, मैं नहीं। उसने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं। सर झुकाए आयशा से बोल रही थी, उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ तुम जिस तरह गई थी वैसे ही वापस आई हो, वरना वो कुछ भी कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। ये उसकी शराफत की दलील है। किसी को अगवा करना कौन सी शराफत है? गलती इंसान से ही होती है, और वो अपनी गलती मान भी रहा है। तुम उसे माफ़ कर दो। मैं नहीं कर सकती। अपने दादा की इतनी सी बात भी नहीं मानोगी? वो अफसरदा हुए। आप उसामा को भूल गए हैं दादा जान, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। हाँ भूल गया हूँ, और अब तुम भी भूल जाओ। आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे भूल जाऊँ उसे, और एक नई ज़िंदगी शुरू कर दूँ कैसे? क्या भूल जाना इतना आसान होता है? वो रोती थी। उसामा की ज़िंदगी इतनी ही थी। हम मरने वालों के साथ मर नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना होता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए सदेपाप करने पड़ते हैं। सारी ज़िंदगी यादों को गले लगाकर नहीं गुजारी जा सकती। नरमी से उसके सर में उंगलियां फेरते वो कह रहे थे, अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को एक मौका और दो। मोहब्बत को महदूद मत बनाओ। ये नामहदूद है। इसे एक ज़ात के गिर्द बांधना छोड़ दो। माजी की कैद से निकल आओ। एक नई ज़िंदगी मुंतज़िर है तुम्हारी। मैं उसामा को नहीं भूल सकती। मैं उसके सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। जब हम खुद भूलना ही ना चाहें तो कैसे भूल पाएंगे? और जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो हो ही जाती है मोहब्बत। बस दिल को इजाज़त दो किसी और के नाम पर धड़कने की। जब दिल को आज़ाद छोड़ दोगी, खुद पकड़ पकड़ कर माजी का कैदी नहीं बनाओगी, तो मोहब्बत हो जाएगी। एक बात मेरी मान लो, उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। वो सिसक रही थी। वो बस खामोशी से उसका सर सहला रहे थे। वहाँ सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बैन करती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? रेमशा को देखते ही उसे गुस्सा आ गया था। मैं बात करनी है तुमसे। तुम नाराज़ हो मुझसे? उसके साथ खड़े होते हुए वो पूछ रही थी। मैं क्यों नाराज़ होने लगा तुमसे? नाराज़ होने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत होती है। अजनबियों से क्यों नाराज़ होने लगा मैं? उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। हम अजनबी तो नहीं हैं, अजनबी ही हैं। मैं जिस रिमशा को जानता था वो तुम नहीं हो। बेगानगी से कहते हुए वो उससे नजरें उसकी तरफ से फेर ली थी। ऐसा क्या किया मैंने? तुम अभी भी पूछ रही हो कि क्या किया है तुमने? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? तुम्हें परी पर भरोसा नहीं था? वो बहन थी मेरी, उसामा के हवाले से मौतबर थी मेरे लिए, और तुमने क्या किया? वो अफसोस से सरनफी में हिला रहा था। तो इस सब के लिए मजबूर भी सबने किया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, खो नहीं सकती थी तुम्हें। किसने मजबूर किया था तुम्हें? अब्बू ने। सिर्फ एक बात की थी जिसके लिए ना मैं मानता और ना परी, और वो तो ये सब जानती भी नहीं थी। और तुमने? एक गहरी सांस लेकर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। तुमने 24 साल की दोस्ती लम्हों में ख़त्म कर दी। और क्या पाया तुमने इस सब से? मैंने तुम्हारे लिए किया था सब, तुम्हें खो नहीं सकती थी मैं। वो रोते हुए कह रही थी, तुम खो चुकी हो मुझे। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब जा सकती हो तुम यहाँ से। ऐसे ना कहो,
मैं माफ़ी मांग लूँगी परी से, सब पहले जैसा हो जाएगा, तुम नाराज़ ना हो मुझसे। वो मिन्नत आमेज़ लहजे में बोल रही थी। जाओ रिमशा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि कभी मुझे मोहब्बत थी तुमसे। थी का क्या मतलब? तुम्हें अब मोहब्बत नहीं है मुझसे? वो बेयकीन थी। नहीं, बेरुखी से कहकर उसने मुंह मोड़ लिया था। चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखने के बाद वो वहां से चली गई थी। आंसू बेदर्दी से बह रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। मेन गेट में से निकलते हुए उसकी नज़र परी पर पड़ी थी, जो लॉन में खड़ी उसे ही देख रही थी। बगैर रुके वो गेट से निकलती चली गई थी। आज अरसलान सबसे मिलने घर आया था। उसे नहीं मालूम था कि दादा ने इसे क्या बात की थी, घर वालों को क्या बताया था। वो बस इतना जानती थी कि उस रोज़ उसकी माँ की आंखों में उम्मीद थी और उसका खुद का दिल वो कुरला रहा था। आज पूरे 6 माह बाद वो उसके सामने गई थी। उसे देखकर वो चंद लम्हे के लिए नजरें नहीं हटा पाया था। ये वो परी नहीं थी जिसे वो जानता था, ये तो कोई और थी, जर्द और बेरौनक चेहरा। वो ऐसी तो नहीं थी। उसने नजरें फेर ली थी। चंद मिनट वहां बैठकर वो निकल कर वो चली गई थी, जबकि वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। वो अपनी अलमारी ठीक कर रही थी जब वलीद ने नॉक करके अंदर आने की इजाज़त चाही। एक नज़र उसे देखने के बाद उसने इजाज़त दे दी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ बैठो। उसे बैठने का इशारा करके वो खुद भी बेड के किनारे पर बैठ गई थी। अच्छा है अरसलान, तुम खुश रहोगी उसके साथ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, अच्छा यही बताने आए थे तुम? मैं वैसे नहीं आ सकता क्या? वो सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर से खामोशी हो गई थी। बचपन कितना अच्छा था ना, हम सब साथ थे, कोई फिक्र कोई परेशानी कुछ नहीं था। काश कि है हमेशा बच्चे ही रहते, कभी बड़े ना होते। खामोशी में उसकी हसरत भरी आवाज़ गूंजी थी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। उसने तसल्ली देने की कोशिश की। जानती हूँ ठीक हो जाएगा, पर क्या पहले जैसा हो पाएगा? उसामा लौट आएगा, हम सब फिर से इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं ना। वो खामोश था। या ये खामोशी असियतनाक थी जो सांसों को बोझल कर रही थी। खामोशी से तंग आकर वो बोल उठी, तुम रिमशा से क्यों नाराज़ हो? क्या तुम नहीं जानती? नहीं, और ना ही जानना चाहती हूँ। तुम अगर मेरी वजह से नाराज़ हो तो मत हो। मैं नहीं हूँ नाराज़ उससे, और तुम उसकी फ़िक्र छोड़ दो। नाराज़गी से कहा गया। क्यों छोड़ दूँ? मेरी बहन है, वो फ़िक्र तो होगी ना। जवाबन वो भी नाराज़गी से बोली। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बोला, अगर वो तुमसे माफ़ी मांगेगी तो क्या तुम माफ़ कर दोगी? मैं नहीं चाहूँगी वो मुझसे माफ़ी मांगे। क्यों? अगर वो माफ़ी मांगेगी तो जो एक भरम सा है वो टूट जाएगा। कैसा भरम? तुम नहीं समझोगे, इसलिए रहने दो और उसे माफ़ करके आगे बढ़। तुम सुन रहे हो? उसे जवाब ना देते देख उसने पूछा। हाँ। वो ज़मीन को घुरा था। तभी आफाक वहाँ आया। उसे देख वलीद उठा। मैं चलता हूँ अब, कहकर वो कमरे से निकल गया। ये क्यों आया था? आफाक बैठते हुए पूछ रहा था। वैसे ही। तुम क्यों आए हो? मैं भी वैसे ही। अरसलान भाई काफ़ी अच्छे हैं। उसके भाई कहने पर परी ने घुरा था उसे। भाई? हाँ, तो तुम्हारे हवाले से भाई हुआ ना। अभी कुछ फाइनल नहीं, तुम पहले ही शुरू हो जाओ। किसने कहा? 1 हफ्ते बाद निकाह है आपका उनके साथ, सिस्टर, और आप अभी तक लाइल्म हैं। इतनी जल्दी? वो शौक में थी। जल्दी कहाँ है, अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। वो मुस्कुरा रहा था जबकि वो खालिया जहनी से उसे देख रही थी। आज वलीद के साथ कब्रिस्तान आई थी। वो कल उसका निकाह था। वलीद उसे उसामा की कब्र के पास छोड़कर थोड़ा दूर खड़ा हो गया था। उसकी कब्र के पास बैठते हुए चंद आंसू उसकी आंख से निकले थे और कब्र की मिट्टी में जज्ब हो गए थे। खाली खाली नजरों से वो कब्र की मिट्टी को देख रही थी। तुमने और मैंने जो ख्वाब मिलकर सजाए थे वो अधूरे रह गए हैं। तुम यहाँ मिट्टी की तबीज चादर ओढ़कर गहरी नींद सो गए हो और मैं सुकून की नींद सोने को तरस गई हूँ। तुम आओ देखो, सब कुछ कितना बदल गया है। कब्र के सहाने सर टिकाए वो सरगोशियां कर रही थी। ऐसे लगता है बीता हुआ कल ख्वाब था या कभी था ही नहीं। तुम इतनी जल्दी चले गए कि यकीन नहीं आता, पर मुझे यकीन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कल मेरा निकाह है। मैं किसी और की दुल्हन बनूंगी, पर मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो, बस नाराज हो ना, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। मैं यहाँ पहली और आखिरी दफ़ा आई हूँ। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। अगर आई तो वापस जाने की हिम्मत खो दूंगी। तुम सुन रहे हो ना? वो रो रही थी और दूर खड़े वलीद के दुख से इस मंजर को देखा था। पता नहीं वो लोग जो दिल के करीब होते हैं इतनी जल्दी क्यों छोड़ जाते हैं। तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। सामिया बेगम फ़ोन पर तैयब से बात कर रही थी, जो 1 हफ्ता पहले ही रायना को लेकर शुमारी इलाका जात गया था। मैं अभी नहीं आ सकता अम्मी, अभी यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं, रायना नाराज़ हो जाएगी। तैयब झुंझलाते हुए कह रहा था। बीवी के नाराज़ होने की फ़िक्र है, बहन की कोई फ़िक्र नहीं। तुम्हारी इकलौती बहन है परी, तुम आ जाओ, फिर दोबारा कभी चले जाना। मैं नहीं आ सकता। रायना पहले ही परी के यहाँ रिश्ते पर गुस्से में है, मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता उसे। और वैसे भी आफाक है तो वहाँ मेरे ना होने से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर कॉल करूँगा, अल्लाह हाफिज़। उसने कॉल कट कर दी थी। हेलो हेलो, फ़ोन कान से लगाए वो हेलो कर रही थी, मगर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। क्या हुआ अम्मी? परी ने पास बैठते हुए पूछा। तैयब नहीं आ रहा, वो अफसोस से बोली। तो क्या हुआ? पहले भी मेरी वजह से उनकी शादी खराब हुई, अब हनीमून तो खराब ना करे। दुख उसे भी हुआ था, मगर छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो जाता अगर वो आ जाता? छोड़े ना, आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। बाजू से पकड़कर वो इन्हें अपने साथ ले गई।
सफ़ेद कुर्ते में वो तैयार आईने के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था जब दरवाज़ा खुलकर सुफियान अंदर आया। आंटी का हुक्म है कि उनके दुल्हा बेटे की तस्वीर बनाकर भेजी जाए। उसे गले लगाते वो हंसते हुए बता रहा था, अगर इन्हें इतना ही शौक था तो मुझे देखने का तो वो आ सकती थी, मगर वो नहीं आई। अपने दूसरे शौहर से फुर्सत मिली तो आए ना। वो तल्खी से बोला, तुम जानते हो अंकल की तबीयत खराब है, वो उन्हें इस हालत में कैसे छोड़कर आ सकती हैं। ओह प्लीज़ आज के दिन मेरा मूड खराब ना करो, उनका जिक्र करके उनके पास दूसरे बेटे हैं, इन्हें भला मेरी क्या ज़रूरत। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ये बता खुश है। हाँ बहुत ज़्यादा, आखिर को अपनी मोहब्बत को पाने जा रहा हूँ, वो तफाखर से बोला था। हाँ मुझे तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है, कैसे अचानक से परनिया के दादा मान गए, हैरान हूँ। इस हैरत का इजहार बाद में कर लेना, अभी चल देर हो रही है। उसे बाही की जानिब धक्का देते वो बोला था। उसके निकाह का जोड़ा आ गया था। वो अभी बैठी देख ही रही थी जब ताई अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में वही जोड़ा था जिसने अपनी शादी के लिए खरीदा था। वो खड़ी हो गई थी। परी मैं चाहती हूँ तुम ये जोड़ा पहनो, मुझे देखना है ये जोड़ा कैसा लगेगा तुम पर। जोड़ा उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो मुस्कुराई थी। ताई अम्मी उनके हाथ पकड़ते उन्हें बिठाया और खुद उनके कदमों में बैठ गई। तुम मेरे उसामा की दुल्हन थी, हमेशा उसी रूप में देखा था तुम्हें, मगर अब शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें मालूम है मेरे उसामा को बहुत मोहब्बत थी तुमसे। आखिरी दफ़ा भी उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का ही कहा। तुम मेरे बेटे की अमानत थी परी। उसकी पेशानी चूमते हुए वो रो रही थी। मैं आपकी बेटी भी तो हूँ और हमेशा रहूंगी। उनके हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए वो बोल रही थी, खुदा खुश रखे तुम्हें, सदा सुहागन रहो। वो उसे दुआएं दे रही थी। दरवाजे में खड़ी सामिया बेगम ने दिल से आमीन कहा था। अल्लाह आपको सब्र देता यम्मी। सब्र तो आ जाता है बच्ची, पर सब्र आने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अब जाओ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैंने तो तुम्हें भी रुला दिया। उसे उठाते वो प्यार से बोल रही थी। मुख्तसर सी बारात आ चुकी थी। निकाह से थोड़ी देर पहले ही सादिया बेगम भी आ गई। फौजान भी आया था मगर रिमशा नहीं आई। सादिया फूफो एक दफ़ा भी उसके पास आकर नहीं बैठी। उसे दुख हुआ था उनका रवैया देखकर। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वो वैसा नहीं होता। खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। उसने इन्हें हमेशा माँ की तरह समझा था, मगर वो कितनी नफरत करती थी उससे। निकाह के वक्त उसका दिल खून के आंसू रोया था। एक लम्हे को उसका दिल चाहे इनकार कर दे, मगर फिर उसने साइन कर दिए थे। निकाहनामे पर साइन करने के वक्त वो उसामा को याद कर रही थी, एक वो ही नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स उसे याद कर रहा था और हर आंख नम थी। अब कि हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कमरे में दाखिल होते ही उसे झटका लगा था। परी बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने नजरें दौड़ाई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चूड़ियाँ उतार रही थी। हल्के फुल्के मेकअप में भी वो प्यारी लग रही थी। वो आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा था। उसके कदमों की आहट पर परी ने मुड़कर उसे देखा था, फिर लहंगा संभालती खड़ी हो गई थी। तुमने जो कुछ किया वो माफ़ करने या भूलने के काबिल नहीं है। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, मगर मजबूर हो गई थी। मेरे दिल में आज भी उसामा की मोहब्बत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें माफ़ करके आगे बढ़ूं, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त की ज़रूरत है। उसके जज्बात को नज़रअंदाज करती वो आराम से बोल रही थी, वैसे तुमने तो जिस्म ही हासिल करना था, वो तो तुम्हें हासिल हो गया, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नफ़रत। उसकी बात ने अरसलान के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितना वक्त चाहे ले लो, मैं तुम्हें तब भी हाथ नहीं लगाऊंगा जब तुम दिल से मुझसे मोहब्बत करोगी, कहकर वो आगे बढ़ा था और उसकी बिंदिया हटाकर पेशानी चूमी थी। कम से कम इतनी इजाज़त तो होगी मुझे, कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था जबकि वो उसकी पुश्त को घूर रही थी। मेरे रब आज मैं पुरस्कून हो गया, अपने फ़र्ज से सबकदोश हो गया हूँ। वो जिम्मेदारी जो मेरे बच्चे ने मुझे दी थी आज उसे पूरा कर दिया है मैंने। अब मुझे सुकून की मौत आएगी। मेरी परी को खुश रखना मेरे मालिक, बेशक तो कादिर है हर चीज़ पर। अगर कोई गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं तो वो माफ़ फरमा दे। बेशक तुझसे बढ़कर रहीम व गफूर मैंने किसी को नहीं पाया। सर को सजदे में झुकाए वो ज़ारो कतार रो रहे थे। ऐसा ऐसा उनके बेचैन दिल को सुकून आ रहा था। सुबह अरसलान के झुंझुड़ने पर उठी थी वो। क्या हुआ है, नागवारी से पूछा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे घर जाना है। उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए तेजी से बोला। क्यों? वो ठटकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप उठा था। तुम्हारे दादा की डेथ हो गई है, नजरें चुराते हुए उसने बताया। कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसे कैसे? शाख से निकलते वो बमुश्किल बोली थी। रात को दिल की धड़कन बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया उनका। अब चलो जल्दी से। वो उसे नहीं सुन रही थी। तो आप अपने उसामा से मिलने चले गए दादा जान? आप झूठ बोल रहे थे कि आप उसे भूल गए हैं, बल्कि हकीकत तो ये थी कि आप उससे मिलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल को खबर क्यों नहीं हुई? वो दिल में इनसे मुखातिब थी। आंसू पलकों की बाढ़ फलांग कर रुखसारों पर लड़क आए थे। 1.5 साल बाद लॉन में बैठी वो गुजरे हुए वक्त को सोच रही थी। इस 1.5 साल में कितना कुछ बदल गया था। रिमशा और वलीद की शादी हो गई थी। शादी से पहले रिमशा आई थी, उससे मिलने माफ़ी मांग रही थी और उसने माफ़ कर दिया था। फौजान और आफाक ने मिलकर अकेडमी बना ली थी और अब उसी में मसरूफ़ रहते थे। रायना
طیب کو لیकर اپنے مائکے چلی گئی تھی اور اب وہیں رہتی تھی۔ ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی تھی، رتابہ، جو کہ ہو بہو پری کے بچپن کی کاپی تھی۔ طیب اسے امی ابو سے ملوانے لاتا رہتا تھا اور پھپھو وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھا ان دونوں کا رشتہ۔ ارسلان کی نگاہیں اس سے سوال کرتی تھیں اور کتنا انتظار، مگر اس کے پاس سوائے نظریں چرانے کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھا، تبھی کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے، پھر بھی نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ کچھ نہیں۔ نظروں کا رخ موڑتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں تھک گیا ہوں پری۔ اور کتنا انتظار، میرا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ معافی نہ ملے۔ وہ سوال جو آج تک اس کی نظریں کرتی تھی، آج اس کی زبان نے بھی کر دیا تھا۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، آج پہلی دفعہ اس نے خود سے پیش قدمی کی تھی۔ شاید نفرت کی برف پگھل رہی تھی۔ تو اپنی تھکن مجھے دے دو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے نرمی سے کہا تھا، تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی محبت کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ وہ دل سے بولا تھا، میں بھی۔ کیا میں بھی؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے اس نے استفسار کیا تھا۔ کسی نازک سے لمحے میں، کسی دن شام سے پہلے آ کر چپکے سے تیرے کان میں یہ کہہ دوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو تم ناراض مت ہونا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ غزل پڑھ رہی تھی۔ اتنے خوبصورت اظہار پر وہ مسکرا دیا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی نوید دی ہے پری۔ اسے سینے سے لگاتے وہ بوجھل لہجے میں بولا اور وہ مسکرا دی۔ اور اسامہ، چند لمحوں بعد اس نے ارسلان کی آواز سنی تھی، وہ میری پہلی محبت تھا اور تم میری آخری محبت ہو۔ اس کی محبت دل کے ایک کونے میں دفن کر دی ہے میں نے، اور اس کونے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ سکون سے آنکھیں بند کیے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا، پھر سر جھکا کر اس کی پیشانی چومی تھی اور اطمینان سے مسکرا دیا تھا۔ اس خوبصورت اظہار پر چاند بھی مسکرایا تھا۔